in commentary. Welcome, Golli sir. येस सर, थँक्स. लास्ट क्वार्टर फायनल उपांत्यपूर्व फेरीतली मॅच आपण पाहतोय. Terrific atmosphere of cricket. Bright floodlight. Climate is ideal for cricket. Light breeze running over the ground. Javed Farooqi opened the bowling attack and facing him, Boom Boom Ashir Ansari. Here we watch Javed Farooqi. Bosto Ashir tried to cut Bissim outside of stump. Fine delivery. येस खूप चांगला चेंडू होता. पडल्यानंतर थोडासा उजव्या यष्टीच्या बाहेरने निघून गेला. खूप चांगला चेंडू. निधावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती झाली. And here we watch Javed Farooqi. वेलकम प्रमोदजी भोईर, वेलकम गणेशजी ठाकरे. With us, the legend of Bhiwandi Vilasar Patil Sahab, watching from VIP dice. You can see there. Javed ball this time, hooks that ball in vacant area, all the way to the fence, but there is a fielder, and finally Ashir Ansari on his way. Big wicket. येस पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये हुक करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र डीप स्क्वेअरला एक चांगला झेल अर्थात त्या ठिकाणी होता आणि खूप चांगला झेल. Yes, ball is coming slightly late. We movement to batsman, and finally batsman on his way. First wicket has gone now, and score is not for one. हॅलो, बघा या क्रीडानगरीचे मुख्य प्रवेशद्वार आहे. त्या ठिकाणी मला वाटतं मोठ्या संख्येने बाईक उभ्या आहेत. ज्यांच्या बाईक आहेत त्यांना एक विनंतीशील, आपण जी वाहनं आहेत आपली प्लीज पार्किंग झोनमध्ये रवाना करा. स्वयंसेवक आपण देखील तिथे जा. स्वयंसेवक आपण तिथे जा. New batsman in Videsh Patil, the wicketkeeper batsman, man from Temboli, pioneer not for one. Shaky start here, losing a toss, batting first here in the last quarter final of Dharmaraja Chashak, Dharmaraja Cup 2022. Here goes Javed Farooqi. आज वार क्या है? रविवार. ये जो जावेद हैं जब गेंदबाजी करते हैं तो शिकार करते हैं और बल्लेबाजी करते हैं तो वार करते हैं. अशीर अन्सारी या शून्यावर बाद झाला. Here we watch Javed Farooqi facing him batsman Videsh. Challenge Pioneer change their strategy, sending one down position Videsh Patil. Oh, fine delivery, balloon one. Lovely ball indeed from Farooqi. येस खूप चांगला चेंडू बघायला मिळाला. काय गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये बघायला मिळते. Lot of variation is there, and Javed used the condition and climate so far, because cool climate, 23 degrees Celsius. You can see there Javed Farooqi. This time try to reverse shot, they threw for a single. We wait for umpire signal, leg by. 1-2 score now, and Pioneer open their account 1 for the loss of 1 wicket. First over in progress. Huge crowd watching this match, and from VIP dice, lot of guests there, including legend of Bhiwandi, ex-mayor Vilasar Patil Sahab, also Mahendra Patil, Maji Sarpanch Kharbao. Welcome all of you. Now Shekhar adjustment in the field. Shekhar Dalvi, the rock of PTC. हॅलो, वेलकम दीपकजी पाटील. Javed Farooqi. But this time uses feet, hits in the air, Yasin out. What a taken by Danish Qazi, edge of the 30-yard circle, and Pioneer in trouble. प्ले मध्ये पाहूया काय झेल घेतलेला आहे. अप्रतिम झेल. What a magnificent catch. Batsman used his feet, tried to play over the mid-off, a jumping effort,
Fantastic catch from DK. हॅलो. Very shaky start, Pioneer. One for the loss of 2 wickets. Pioneer ranking on number 5. Dhanesh on number 1. Challenge number 2. Number 3, SK. And Bunty, number 4, RD. Number 5, Pioneer. Rise Builder and Shivas. New man in Zulfikar, the sword of Pioneer. But this is the excellent start from Javed Farooqi. Claimed 2 important wickets for his side. Huge crowd here. Welcome all of you. So far, 5 balls in this over. Only 2 on the board, 1 on the board. And Pioneer losing 2 wickets. Last man to go, the departure of Hamad Ansari. Javed Farooqi. Facing him, Zulfikar Momin. Here goes Javed Farooqi. Right arm, round his stumps. Goes to Zulfikar, turning on the onside. They go for one, turning with the corner, and that marks end of the. There is a overthrow, and batsman taken 2. थँक्स धन्यवाद सर. तर जाऊया आपण व्यासपीठावर मंचावर स्वागत आणि सन्मान करूया. भिवंडीचे आणबान शान, भिवंडीचा ताज म्हणून ज्याची ओळख आहे, भिवंडी मनपाचे माजी महापौर, लेजंड ऑफ भिवंडी मान्य श्री विलासर पाटील यांचं करूया आपण विशेष स्वागत. या स्पर्धेचे प्रणेते सन्मान्य निलेश चौधरी साहेब, विठोबाजी नाईक साहेब, नितेशजी एनकर, मयूरजी चौधरी. आपणास विनंती असेल आपण आपल्या शुभ असते साहेबांचं आपण विशेष स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर करायचंय. स्वागत आणि सन्मान होतोय लेजंड ऑफ भिवंडी, भिवंडी मनपाचे माजी महापौर, भिवंडीचं नामांकित असं व्यक्तिमत्व, भिवंडीचे आणबान शान सन्मान्य विलास आर पाटील साहेबांचं या ठिकाणी येतोची स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केलं जातं. शाल, पुष्पगुच्छ आणि भगवती गीता देऊन या मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान केलं जातं. त्यानंतर साहेबांनी देखील विनंती असेल की या स्पर्धेच्या संदर्भात आपण देखील 1-2 शब्दामध्ये आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. विकास म्हात्रे यांना देखील आपण सन्मानित करायचं, विकासजी म्हात्रे यांना आपण सन्मानित करायचं आहे. देखिए लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास साहब आपसे एड्रेस कर रहे हैं. मैच शुरू रहेगा और हमारी कैमरा टीम आपको 2 एंगल में बताना है. चौका आता हुआ यहाँ पर. आइए चलते हैं. वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं. इट्स ओवर टू लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास साहब. इस ओवर के बाद वो एड्रेस करेंगे. चौका आता हुआ. हॅलो. वेलकम नंदलाल जोशी, माजी सरपंच ग्रामपंचायत ओवळी, तुमचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. मेरे ख्याल से कैच भी छूटा था, मौका भी दिया और चौका भी दिया. पायनियर का स्कोर 7 रन 2 विकेट. साकिब खान घूमती हुई गेंद, ये जाती हुई मस्तक पे दस्तक. 6 रन, पंख लगा दिए गेंद को, उड़ती उड़ती चली गई डीप स्क्वायर लेग पर. 6 रन.
2 रन पे 2 विकेट गिरे थे। ये जान अतली पे लेके बल्लेबाजी करते हैं और जान अतली पे किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती है, इसको बनाना होता है। यस, खूप चांगला फटका, स्विच हिटचा फटका बघायला मिळाला. विरेश, कुठल्याही प्रकारे मानसिक दबाव नाहीये, आपला नैसर्गिक खेळ करताना विरेश. और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने वार किस पे किया है, मजबूत कड़ी साकिब खान पे। कहते हैं कि वार मजबूत कड़ी पे करो, बाकी कड़ियाँ अपने आप खुल जाती है और लोहा गर्म हो तो ही हथौड़ा चलाना चाहिए। 17 रन 2 विकेट पायनियर स्पोर्ट इस आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। थोड़ी हलचल मच गई वहाँ पर बीच मैदान पर। देखना है कि जुल्फिकार दोनों अंपायर से कुछ चर्चा करते हुए। साकिब खान विरेश पाटिल के लिए पायनियर ने ऊपर उनको इसीलिए भेजा है। ओ बढ़िया वापसी रन आता हुआ देखना है क्या, 22 का इशारा अंपायर का। 1 रन और आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 2 विकेट पायनियर। इस ओवर में काफी रन आ रहे हैं। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ते हुए महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर मल्टी लैंग्वेजेस अजय गरत, स्वागत है अजय आपका। लेकिन स्वागत साकिब का भी हो रहा है। साकिब खान, ओ बढ़िया वापसी आगे रखा था और घूम के मारना चाहते थे, गेंद ने काटा बदला था। ये देखिए काफी स्विंग होके गई थी। उंगलियां बहुत अच्छी फेरते हैं गेंद पर साकिब खान, और हवा में ड्रिफ्ट होती है उनकी गेंद अंदर की तरफ दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, और फिर टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ जब स्पिन होती है तो उसको खेलना बहुत मुश्किल है। कटर गेंदें अच्छी करते हैं। ये तेज की थी लेकिन इस मर्तबा स्कूप करने की कोशिश। डॉट गेंद। 2 ओवर की समाप्ति, 18 रन 2 विकेट। और चलते हैं उस पर्सनालिटी की तरफ जिसने क्रिकेट टेनिस को ऊंचाइयों पे ले जाया, और आज वही क्रिकेट सारे भारत देश और सारी दुनिया में है। हॅलो, द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर जी से मैं रिक्वेस्ट हाँ। करूंगा कि आपको संबोधित करना है, address करना है। मी सन्माननीय निलेशजी चौधरी यांना देखील विनंती करतोय. आज क्रिकेटला या टेनिसला ज्या मुकामवर पोचवले आणि भिवंडीच्या शहरामध्ये चांगला क्रिकेट कसं खेळायचं टेनिसचं ते आमचे मित्र परममित्र विलास आर पाटीलनी दाखवलं, आणि या मुलांना एक व्यासपीठ दिला. आणि या भिवंडी शहरामध्ये जे नेते कधी येत नव्हते, जे अभिनेते कधी येत नव्हते, क्रिकेटपटू येत नव्हते, त्या सर्वांना चॅलेंजला आणण्याचं काम आणि त्यांना मजबूर करण्याचं काम विलास पाटीलनी केलं. मी खास करून या स्पर्धेला त्यांनी हजेरी लावली, तरी आमच्या सर्व धर्मराजा ग्रुपतर्फे वरालदेवी स्पोर्टच्या वतीने आणि या सर्व नागरिकांच्या वतीने तुमचे खूप खूप आभारी आहे की तुम्ही आले आणि तुम्ही 2 शब्द या शहरामध्ये आपल्या या क्रिकेटपटूंना सांगा, एवढी विनंती करतो. यस अंपायर, खेल को रोकना है कुछ देर के लिए। धर्मराजा चषक तसेच वरालडे स्पोर्ट्स आयोजक धर्मराजा चषक. प्रथम तर मी या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे मित्र निलेश चौधरी, आमच्या नगरसेविका अस्मिता चौधरी आणि तसेच या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले विविध गावातील सरपंच, उपसरपंच आणि मान्यवर. प्रथम तर ह्या ग्राउंडवर मी बराचसा खेळलेला आहे, परंतु आज या ग्राउंडची परिस्थिती निर्माण केली आहे जशी भिवंडी शहरामध्ये त्यांच्या वॉर्डामध्ये प्रगती करण्याचा प्रयत्न आणि यशस्वीपणे पार पाडलेले निलेश चौधरींनी हे ग्राउंड बघून अतिशय आम्हाला आनंद होतो की काहीतरी मुलांकरता आज व्यवस्था तयार झालेली आहे. आता असं झालं आहे की भिवंडीच्या 4ही कोपऱ्यामध्ये 4 ग्राउंड झालेले आहेत. चॅलेंज, भादवड आणि आज या ठाकूरपाड्यामध्ये इथे उपस्थित. म्हणजे मला एवढा आनंद होतो
तर चौधरी साहेब आपल्याला याच्यामध्ये अजून 6 हायमास लाईट लावायला लागतील आणि महानगरपालिकेमधून आपल्याला ते मान्य करून घ्यावं लागतील, तरच ह्या ग्राउंडची आणखीन शान वाढणार आहे. आणखी याच्याकडे मी नक्कीच लक्ष आम्ही देऊ, कारण की आज आमची सत्ता नाही, परंतु जेव्हा सत्ता येईल तर नक्कीच याच्याकडे आमचं लक्ष राहणार. आणि खास करून ह्या ग्राउंडला मी फार मानतो, कारण की मी पहिल्यांदा ज्यावेळी या ग्राउंडवर खेळलो तेव्हा जॉली स्पोर्ट्स कामतघरमधून मी इथं खेळलो होतो. तर मला हे फार आठवतं 1988-87ची गोष्ट आहे. या ठिकाणी निलेश चौधरी, अस्मिता चौधरी आणि त्यांचं सगळं परिवार ह्यांनी नेहमीच मला माझ्या राजकारणात त्यांनी मदत केलेली आहे. जसं क्रिकेटला यशस्वी तयार करतायत तसंच या लोकांनी राजकारणामध्ये सुद्धा प्रतिभा पाटीलला महापौर बनवण्यामध्ये फार मोठं यशाचं काम केलं होतं. दोन्ही वेळा त्यांनीच मोठं सहकार्य केलं, त्यामुळे हा मी जो विडा आहे तो उचलला आणि पार पाडला. आज या ठिकाणी मला त्यालाही सांगू इच्छितो की निलेश आणि त्यांच्या सगळ्या टीमने जे काम केलेलं आहे वॉर्डामध्ये, हे क्रिकेटच्या बाजूनी जाऊन बोलतो, कारण की क्रिकेट हा याचं क्षेत्र नाही आहे. कारण की धर्मराजाचे बरेचसे कार्यक्रम होत आहेत. कोविडच्या काळामध्ये मी काम पाहिले होते, आणखीन त्याचे बरेचसे सामाजिक काम पाहिले होते, परंतु क्रिकेटमध्ये त्याने रहस्य दाखवलं, मला फार आनंद वाटला. आणि मी त्याला आता विचारलं, बरं 1च वर्ष आहे का? तर नाही म्हटलं. असं तर मी त्याला नक्कीच शुभेच्छा देईन. आणि मी हेच म्हणेन का हाय टुर्नामेंट कारण की हे लाईव्ह एवढं झालेलं आहे, लोक यामध्ये एवढी प्रसिद्धी झालेली आहे की ही प्रसिद्धी कायम ठेवावी, हा नाव कायम ठेवावं, धर्मराजा चषक कायम ठेवावं. आणि त्याकरता जे काही सहकार्य लागणार त्याकरता आमचं पाठबळ आणि सहकार्य राहणार, हे नक्कीच तुम्हाला ग्वाही देतो. या ठिकाणी मला माहिती नव्हतं की महिमा चौधरीसुद्धा तुमच्या मावशीच्या फॅमिलीपैकी आहे. तर कदाचित तर त्यावेळीसुद्धा आम्हाला कल्पना नव्हती, पण जेव्हा आली मला, अरे बापरे, आपण जेव्हा आणली होती एक साधा 15 वर्षापर्यंत आम्ही प्रचाराला, तेव्हा माहिती नव्हतं, कदाचित फ्रीमध्ये काम झालं असतं. पण हे चौधरी फॅमिलीपैकी आज कळलं. परंतु हे काम करण्याचं धाडस लागतो, हे एवढं सोपं नाही आहे. हे महिमा चौधरी आले आणि येऊन गेले असं नाही आहे, त्याच्यामागे परिश्रम करावं लागतात, बरेचसे लोकांना कॉन्टॅक्ट करावं लागतात, तेव्हा कुठे जाऊन हे सगळे लोक येतात. म्हणजे हे कपिलदेव वगैरे जे आपल्या भिवंडी शहरामध्ये आले, बिशनसिंग बेदी आले, गावस्कर आले, बरेचसे लोक आले आहेत, पण असं नाही आहे. त्याच्यामागे 15-15, 20-20 दिवस मेहनत घ्यायला लागते, तेव्हा कुठे या भिवंडी शहरामध्ये येत आहेत. आपण ह्या जमिनीवर ह्याचा पावित्र्य कायम ठेवावं आणि नक्कीच ह्या क्रिकेटला पुढे घेऊन जावं. पुन्हा एकदा मी सगळ्या क्रिकेटर आणि त्यांच्या टीमला मी खरोखरच शुभेच्छा देतो. आणि प्रिन्स मूवी आहे ना, तुम्हाला मी शुभेच्छा देतो. व्हेरी गुड क्वालिटी, व्हेरी गुड क्वालिटी. म्हणजे मला असं वाटलं का कुठेतरी प्रोग्रेस झालेला आहे. कीप इट अप. कॉमेंटेटर्स व्हेरी गुड. पंच पुन्हा 2 निर्णय घेऊ नका, एकच निर्णय घ्या. एकदा आऊट दिलं तर आऊटच करा, कारण की कन्फ्युजन तयार होतो. पुन्हा एकदा धर्मराजा चषकच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना मी आभार करतो की आपण मला इथं बोलवलं, माझं स्वागत केलं, त्याबद्दल मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर साहब. क्या एड्रेस किया उन्होंने. हॅलो. प्रिंस मूवीज, नो डाउट एट ऑल. मैं अक्सर कहता हूं कि विलासर के शो अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज. तर जाऊया आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर, मंचावर स्वागत आणि सन्मान करूया भिवंडीचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय भरतभाई जडेजा. या स्पर्धेचे मुख्य फोकसमॅन खेल की शुरुआत करना है. एंकर बादशाहबाई मयूरजी चौधरी यांच्या शुभ हस्ते मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी व्यासपीठावर मंचावर केलं जातं. पंचांनी देखील सामन्याला सुरुवात करायची आहे. विशाल पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच. स्वागत है आप सभी का. आखिरी क्वार्टर फाइनल चलता हुआ अल्ताफ बाली फेम टीम पायनियर और शोएब मेमन फेम टीम विक्टोरियन के बीच में. दोनों टीमों के बीच में इससे पहले 2 मुकाबले हुए. एक में जीत पायनियर की हुई और एक में जीत विक्टोरियन की हुई. इस सीजन में धनेश नंबर 1, चॅलेंज नंबर 2 सँटी परिहार यांना देखील करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. सँटी परिहार आपण देखील पुढे या. मी स्वराज्य चौधरी लविन यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभेच्छा त्यांचं स्वागत आणि सन्मान आपण करायचं आहे. विशाल की गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, गेंद को रिवर्स स्वीप किया है, 4 रन.
डेविड हटन ने जब ये शॉट खेला था तो सोचा नहीं होगा कि शॉट इतना ज्यादा खेला जाएगा। हालांकि वेलकम अनिल चौधरी। उसके बाद रिवर्स शॉट जो खेला वो केविन पीटरसन ने खेला, लेकिन अब ये वक्त की जरूरत हो गई है। क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में अजय? हिम्मत की दाद देनी होगी बल्लेबाज के ऐसे स्ट्रोक्स खेलने के लिए। त्यानंतर या साहस- व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित मान्य श्री नंदलाल जोशी माजी सरपंच ग्रामपंचायत ओवळी यांना देखील करू आपण सन्मानित। मयूरजी चौधरी, नितेश शेनकर, आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार साहब हमसे विदा लेते हुए बहुत धन्यवाद। देखना है कि अंपायर क्या कह रहे हैं। माजी सरपंच ग्रामपंचायत ओवळी सन्मान्य नंदलाल जोशी यांना देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जातं। ये आप देख सकते हैं लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार विदा लेते हुए महेंद्र पाटिल साहब भी हैं, उनके साथ माजी सरपंच खरबाओं, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। ताडाली वड़ाल देवी ताडाली स्पोर्ट उनका आभार व्यक्त करती। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। पॉइनियर का पलटवार देखिए, पिछला मैच पॉइनियर का 3 ओवर में 47 कुल 60 बनाए, पहले ओवर में 2 फिर पलटवार। ये पॉइनियर है, ये कुछ भी कर सकती है। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए वीरेश पाटिल 18 पर पहुंच चुके हैं, 7 गेंदों का सामना किया है और सभी उनके रन्स चौकों छक्कों में आए हैं। 1 सिक्सर और 3 चौके लगा चुके हैं। इसके बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला आरडी बनाम रईस बिल्डर। त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित मान्य श्री दीपकजी पाटील, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उपाध्यक्ष भिवंडी ग्रामीण यांना देखील आपण करू या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित। सन्माननीय दीपकजी पाटील। 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पे पाइनियर। ओवर नंबर 3 चलता हुआ वीरेश को ट्रम्प कार्ड के तौर पे भेजा और अभी तक कामयाब। विशाल पाटिल अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। प्रिंस मूवीज की काफी सराहना की और क्यों ना हो किंग ऑफ टेलीकास्ट विलासार के शो अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज और प्रिंस मूवीज का टेलीकास्ट आप शब्दों में नहीं कह सकते। 22 रन 2 विकेट। इस मर्तबा क्रीज में पीछे जाके पुल करना चाहते थे और देखना है क्या कुछ हुआ है। जुल्फिकार ने कॉल किया था वहां पे, जोखिम बड़ा रन पूरा किया है। ये देखिए क्रीज में पीछे जाके खेलना चाहते थे, कट के अंदर की जानिब गेंद आई थी टिप्पा खाने के बाद। 1 रन और आता हुआ स्कोर में 23 रन 2 विकेट। ओवर नंबर 3 चल रहा है। या ठिकाणी महिला भगिनींचं देखील या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर केलं जात आहे। सौभाग्यवती पुष्पाताई चौधरी, इस मैच की विजेता रेश्माताई चौधरी, रेश्माताई मुकादम आणि त्याचबरोबर राजश्री दीपक चौधरी या माऊलींचं या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर केलं जातं। धन्यवाद। विशाल पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, इस मरतबा शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम। 1 रन बनता हुआ। जुल्फिकार भी अपने फॉर्म को लेकर काफ़ी परेशान चल रहे हैं, लेकिन ये सही समय है क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल है और काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है जुल्फिकार। उम्मीद यही है कि एक अच्छी पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए। अभी तक हालांकि उनका फुटवर्क उतना सटीक रहा नहीं है, जिस वजह से अच्छे खासे रन्स वो बना नहीं पाए हैं। 4 गेंदों में 3 रनों पर बैटिंग करते हुए क्या विहंगम दृश्य है। अद्भुत नज़ारा, आंखों में डूब जाने वाला व्यू। विशाल पाटिल तर जाऊया व्यासपीठावर मंचावर स्वागत आणि सन्मान करूया मान्य श्री प्रमोदजी भोईर। क्रीज में पीछे जाके टर्न किया है गेंद को। प्रमोदजी भोईर यांना देखील करूया आपण 2 रन। स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित। 2 रन आते हुए स्कोर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है पायनियर स्पोर्ट। वीरेश कमाल की प्रमोदजी भोईर बल्लेबाजी यांना कर रहे देखील हैं। या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जातं। शेळू माता बळ या संघाचे उत्कृष्ट क्रिया 9 गेंदे 21 रन। ओ बढ़िया गेंद, पैर नहीं चले थे। और कहते हैं कि जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है
क्रिकेट त्यानंतर मान्य श्री गणेशजी ठाकरे यांना देखील आपण करूया सन्मानित. गणेश ठाकरे अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाचे एक नामांकित क्रिकेटर, आमचे परममित्र. विशाल पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए ओ अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया वहां पर वीरेश पाटिल को. बहुत त्यानंतर ज्यादा किशोर पाटील यांना देखील आपण, किशोरजी चौधरी यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. किशोरजी चौधरी यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. सन्मान्य विनोदजी चौधरी असतील, आदरणीय संजय गायकवाड असतील, मान्य श्री जगन चौधरी असतील, मान्य श्री प्रमोद चौधरी, शैलेश चौधरी. 3 ओवर की समाप्ति रन बने. चला विनोदजी आपण देखील पुढे या. विनोदजी चौधरी आपण देखील पुढे या. मोहन भैया आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हर ओवर के बाद मेहमानों का सत्कार पहले जरूरी है हमारे लिए. हम हर ओवर के बाद करेंगे, अब आप कर सकते हैं. विनोदजी चौधरी आपण देखील पुढे या. संजयजी गायकवाड, जगनजी चौधरी. या मनोहरजी भगत आपण देखील या. मनोहरजी चौधरी आपण देखील या. छत्रपती बजागे, एकनाथजी ठाकूर. नए बैट्समैन बेवंडी के डीकॉक माजिद बोबड़े बल्लेबाजी को आए. पिछले मैच में एक सिक्सर लगाने के बाद आउट हुए थे. धर्मराजा चषक 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत. आखिरी क्वार्टर इस मैच की विजेता टीम दूसरा सेमीफाइनल मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 से खेलेंगी. अगले सेमीफाइनल के टॉस के लिए दोनों टीमों को रिपोर्ट करना है. विनोद पाटिल फैम टीम RD 4440 और उनके साथ तारिक रईस फैम टीम रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली. वेलकम विनोदजी काटेकर, न्यू 40+ भिवंडी ग्रामीण संघटनेचे सन्माननीय जे उपाध्यक्ष आहेत, तुमचे देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. जगनजी चौधरी यांना देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केले जातं. मनोहरजी चौधरी, एकनाथजी ठाकुर, छत्रपति बजागे. साकिब खान को मोर्चे पे लगाया गया है. पहले ओवर में साकिब खान ने कुल मिलाकर 14 रन दिए. थोड़े महंगे थे लेकिन फ्रंट लाइन बॉलर हैं, उनको कंटिन्यू रखा गया है. साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड ही स्टंप्स. इस मरतबा गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ पे और फिर से सस्ते में आउट होकर जा रहे हैं जुल्फिकार मोमिन. स्ट्रॉन्ग जोन था. जी बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था. सामने उन्होंने अपने करियर में बहुत से रन्स बनाए हैं, लेकिन इन दिनों वहाँ पर ज़्यादा आउट भी होते हुए देखने को मिलते हैं. और जो आपकी मजबूती होती है ना, वो आपकी कमज़ोरी तो बन ही जाती है. नए बैट्समैन हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी बल्लेबाजी को आ रहे हैं. पाइनियर का स्कोर है 26 रन 4 विकेट, 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. साकिब खान ने अभी तक कितनी विकेटें ली है? ये पहला विकेट हासिल करते हुए साकिब खान. गुरुनाथजी मस्के यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. गुरुनाथजी मस्के दादा आपण पुढे या. अजय गरज सबसे बड़ी बात है कि जितने टूर्नामेंट हुए अलग अलग गेंदबाज बेस बॉलर बने, अलग अलग बल्लेबाज बने. सिर्फ महेंद्र मागे बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन. पहले वो सरपंच उप सरपंच चषक साउंदे और उसके बाद गावदेवी कप बापगांव. गुरुनाथ दादा आपण देखील या. गुरुनाथजी मस्के साहेब आपण देखील या. साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड ही स्टंप जाते हुए फाइक अंसारी के लिए ये बेहतरीन बैटल है. ऑफिस नाम के बाहर नो बॉल है. टैप कर दिया है, गेंद को पीछे सरक रही है. रविश मोमिन ने पैरों से रोका है. इस बीच 2 रन पूरे किए हैं बैट्समैन ने. नो बॉल. विनोदजी काटेकर 3 रन और फ्री हिट आता हुआ. विनोदजी काटेकर आपण देखील पुढे या. भिवंडी क्रिकेट असोसिएशन न्यू 40+ संघटनेचे सन्माननीय उपाध्यक्ष. ये बैट्समैन को फ्री हिट देना, क्योंकि हिटमैन है, मानो ऐसा है कि दावत खात्मे के बाद भी आपने उनको रोके रखा है. और साकिब के साथ ये काफ़ी पुरानी समस्या है.
इन दिनों तो ज़्यादा देखने को मिल रही है, नो बॉल करते ही करते हैं। मैंने भिवंडी एकता ट्रॉफी में भी देखा, वहाँ पर भी कुछ नो बॉल्स किए थे उन्होंने, ओवर स्टेपिंग की थी, और इस टूर्नामेंट में भी। साकिब खान फ्री हिट लेने के लिए हिटमैन। साकिब खान ऑफ स्टंप के बाहर, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, उछाल बहुत था, तेज गेंद थी, जज नहीं कर पाए वहां पर बैट्समैन फाइक अंसारी। बल्ला चलाना चाहिए था कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्री हिट गेंद थी, लेकिन शायद वो समझ रहे थे कि वाइड गेंद होगी। स्पिन हुई थी बाहर की तरफ, थोड़ा पीछे भी रखा था, टर्न था, उछाल था गेंद में, तो फ्री हिट गेंद खाली चली गई है। रन संख्या रुकी हुई है 29, 4 विकेटों के नुकसान पर। 29 रन 4 विकेट। साकिब इस मर्तबा क्रीज में पीछे जाके मिस टाइम स्ट्रोक और बहुत बड़ी विकेट। फाइक अंसारी डग आउट में लौटते हुए, और पायनियर को लगने वाला ये सबसे बड़ा झटका। वेलकम. एक डसिंग अंदाज डसिंग पर्सनॅलिटी आहे सन्माननीय निलेश चौधरी साहेबांचे परममित्र जगनजी पाटिल. तुमचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. जगन पाटिल साहब हमसे जुड़ चुके हैं, इताड़े के प्रथम नागरिक सरपंच, किरोली इताड़े ग्रुप ग्राम पंचायत के सरपंच हैं. स्वागत है आपका सर धर्मराजा चषक में, मोस्ट वेलकम. 29 रन 5 विकेट. देखिए चर्चा हम वही कर रहे थे कि तेज गेंदबाज की शॉर्ट पिच सीने के करीब रहे तो उस पर शॉट खेलना इतना आसान नहीं होता है. काफ़ी टर्न और उछाल देखने को मिल रहा है साकिब की गेंदों में, और अंडर फ्लड लाइट्स तो बहुत खतरनाक गेंदबाज बन जाते हैं. वैसे डे में भी उनकी गेंदबाजी का बोलबाला रहता ही है. 29 रन 5 विकेट. अब तक पायनियर 3 सेमी खेल चुकी है, 2 सेमी और 1 रनर्स. इसका मतलब है 3 सेमी खेली और विक्टोरियन 2 सेमी खेली. साकिब खान गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी इस वक्त सुनहरे बाजू बनते हुए टीम के लिए सामना करेंगे खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख. और दूर से खेला था, बीट विकेट कीपर, लेकिन कमाल की वहां पे फट रहा था वाइट. 1+1 2 रन आते हुए स्कोर में. पायनियर का स्कोर 31 रन 5 विकेट. क्या एफर्ट रहा था वहां पे रविश मोमिन का. बढ़िया कोशिश उनकी, निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए. साकिब की ये तेज गेंद थी, भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें करते हैं साकिब खान. आप जाकर स्ट्राइक माजिद बोबड़े के पास आया है जो बाएं हाथ के बैट्समैन है, और जब बाएं हाथ का गेंदबाज गेंदबाजी करता है तो बाएं हाथ के बैट्समैन के सामने कठिनाई महसूस करता है. इताड़े और किरोली ग्रुप ग्राम पंचायत के सरपंच प्रथम नागरिक जगन सेठ हमारे बीच में पहुंच चुके हैं. आपका हार्दिक स्वागत. वीआईपी डाइस पे आप उनको देख सकते हैं. ये भी क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं. जी बिल्कुल सही कहा आपने, उनका भी काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट रहता है. इस मरतबा छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, रन नहीं बना. अच्छी बॉलिंग रही साकिब खान की अभी तक. देखिए शुरुआती दौर में मैंने भी सुना था कि जगन सेठ सिटी क्रिकेट में अपनी टीम ला रहे हैं, लेकिन कुछ अड़चनों की वजह से वो पीछे हो गए. आने वाले समय में ज़रूर उनकी टीम आपको देखने को मिलेगी, और खुद वो भी अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं. 31 रन साकिब की गेंद. इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को खेला है, 1 रन पूरा किया और थ्रो हुआ है, और यहाँ पे 2 रन पूरे होते हुए लाठीचार्ज क्रिकेट मैदान में चलता हुआ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ. तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है ऑनफील्ड अंपायर ने. यस, क्योंकि सुविधा उपलब्ध है. थोड़ा लेट स्टार्ट लिया था माजिद ने, शेखर ने गेंद को कलेक्ट किया. देखना है कि तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं. थर्ड अंपायर के पास ये निर्णय सौंपा है. बढ़िया थ्रो आया था पहले बाउंस पर, कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, और
देखना है क्या निर्णय आता है। देखिए ऑन फील्ड अंपायर की जो सोच है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत ही नजदीकी मामला है, इसलिए तो उन्होंने तीसरे अंपायर की तरफ हेलो। रुख किया है। इस स्थिति में यस आणि ह्याच दरम्यान मी ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक आणि भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष बहुत संतोष मुश्किल शेट्टी साहेब यांचं. बहुत मुश्किल निर्णय वहाँ पर। तर जाऊया व्यासपीठावर मंचावर सुप्रसिद्ध उद्योजक मनोज सिंग यांना करूया आपण सन्मानित. मनोज सिंग, दीपकजी बजेगा आपण आपल्या शुभ हस्ते मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान यस इज करतो. आउट, माजिद बोबड़े इज आउट। अंपायर का कहना है कि बल्ला ऑन द लाइन था और इसका उदाहरण आपको चाहिए तो वर्ल्ड कप 1996 के पहले ओवर में जाइए जहां सनत जयसूर्या को आउट दिया गया था। डैशिंग डायनामिक विद्यमान नगर सेवक भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के संतोष शेट्टी साहब हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। मनोज सिंग यांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान केलं जातं. त्यानंतर या व्यासपीठ मंचावर उपस्थित मान्य श्री अनिल सिंग यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. बड़ी विकेट जाती हुई पॉइनियर की रनआउट के रूप में। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा देर से स्टार्ट लिया था, पहले रन में बहुत आगे निकल गए थे माजिद बोबड़े, लेकिन जब पॉइनियर की पहले ही 5 विकेटें गिरी थी तो इस तरह के रन की आवश्यकता अजय थी। देखिए रन की आवश्यकता तो हमेशा रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट लिया, उस वजह से विकेट गिरा। अनिल सिंग यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. अनिल सिंग यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. 32 रन 6 विकेटों के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल चलता हुआ आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और अभी अभी हमसे जुड़ चुके हैं भिवंडी निजामपुर हेलो। महानगर पालिका प्रफुल्ल पाटील यांना देखील करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण सन्मानित. प्रफुल्लजी पाटील यांना देखील आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करायचं आहे. नितीश ऐनकर आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठ मंचावर करायचं आहे. 32 रन 6 विकेट। साकिब इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाइयों के बलबूते पे मोड़ा है। डीप स्क्वायर लेग पे हुसैन है, 1 रन आता हुआ स्कोर में, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ। 33 रन 6 विकेट पॉइनियर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अजय क्या लगता है? त्यानंतर सूरज मात्रे यांना देखील आपण सन्मानित करायचं. सूरजजी मात्रे यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. RD 4440 के कैप्टन और रईस बिल्डर के कैप्टन पहले सूरज मात्रे, नयन मात्रे, मयूर मात्रे या सर्वांना आपण सन्मानित करायचं आहे. नितेश शैनकर, मयूरजी चौधरी आपण आपल्या शुभ हस्ते मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठ मंचावर करायचं आहे. पहले सेमीफाइनल के टॉस के लिए आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। विनोद पाटिल फैम टीम RD 4440 और रईस बिल्डर एंड डेवलपर। 4 ओवर की समाप्ति पॉइनियर ने बनाए 33 रन, विकेटें गिरी है 6। गेंदबाजी में विशाल पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है। समय में मयूर म्हात्रे, सूरज म्हात्रे, धनेश यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए विशाल पाटिल और उनका सामना करेंगे बैट्समैन अकबर शेख, पावर हिटर। अकबर शेख भी इस सीजन में नयन मात्रे बड़ी यांना देखील आपण बारी नहीं सन्मानित खेल करायचं. पाए। नयनजी मात्रे यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. अकबर शेख भी बहुत बड़ी बारी नहीं खेल पाए। 33 रन 6 विकेट। विशाल पाटिल अकबर को स्लॉक कर दिया है, गेंद जारी है, जारी है, जारी है, सजनी गई साजन के घर, 6 रन। यांना देखील आपण सन्मानित करायचं. किशोरजी मेहर आपण देखील पुढे या. किशोरजी मेहर यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. नितेश भाऊ 39 रन 6 विकेटों के नुकसान पर कमाल का शॉट खेला पावर हिटर अकबर शेख ने। बहुत दूर किशोर गेंद मेहर गई। यांना देखील आपण सन्मानित करायचं. किशोरजी मेहर
39 for the loss of 6 wicket. We are in 5th over and Pioneer losing a toss and batting first here. उनचालीस रन में 6 विकेटों के नुकसान पर पांचवें ओवर का खेल चलता हुआ. हॅलो. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित मान्य श्री अनिल चौधरी यांना देखील आपण करूया सन्मानित. कामतगरचे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत सन्माननीय अनिलजी चौधरी यांना देखील आपण करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. अरशद उंडो तूफानी बल्लेबाज हमसे ऑनलाइन जुड़ चुके हैं. उन्होंने इस कप के लिए और पायनियर को ऑल द बेस्ट कहा है. 39 रन 6 विकेट. विशाल पाटिल ओ इन द एयर बीट और आउट एलबीडब्ल्यू. बड़ी विकेट. अनिल चौधरी यांनी देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केले जात. त्यानंतर अंजुल चौधरी यांना देखील आपण सन्मानित करायचे. कामतगरचं यंग जनरेशन युवा नेतृत्व. दोनों अंपायर अब एक जगह जा रहे हैं. हालांकि अपील हुई थी वहां पर. देखना है दोनों अंपायर आपस में सलाह मशवरा करते हुए. अकबर का कहना है कि गेंद बल्ले को छूने के बाद लगी थी. हॅलो. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित मान्य श्री प्रकाशजी भोईर समाजसेवक कालवार यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. मयूरजी कपिल अँकर आपण आपल्या शुभस्थित त्यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करायचं आहे. अपनी जगह आ रहे हैं प्रकाश भोईर. अंपायर. यस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि दोनों टीमें अंपायर से कोई आर्गुमेंट्स ना करें और देखना है क्या कुछ हुआ है. त्यानंतर श्रीकांत मात्रे समाजसेवक कालवार. श्रीकांत. डिसिजन स्टिल सन्मान्य पेंडिंग. ईश्वरजी चौधरी आपण तिकडे प्रेक्षकामध्ये असतात प्लीज आपण मान्यवर कक्षामध्ये या. ताडलगावचे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत सन्मान्य ईश्वर चौधरी ईश्वर हरी चौधरी. आमचा आवाज जर तुम्हापर्यंत पोहोचत असेल तर प्लीज आपण देखील मान्यवर कक्षामध्ये या. सन्मान्य प्रकाश म्हात्रे यांना देखील या ठिकाणी सन्मानित केले. त्यानंतर गोपाल म्हात्रे यांना देखील आपण करूया सन्मानित. अपनी जगह पे जा रहे हैं वहां पर अंपायर. और देखना है क्या निर्णय देते हैं. यस इज आउट. 7वीं विकेट गिरती हुई पायनियर की 39 के योग पर. अकबर शेख एलबीडब्ल्यू आउट होके जा रहे हैं. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडळ अध्यक्ष सन्मान्य मोहनजी कोंडा यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. मयूरजी आपण आपल्या शुभ असते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर करायचं आहे. मोहनजी कोंडा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दक्षिण मंडल. 39 रन 7 विकेट. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त आते हुए मारूफ भाबे. कहीं ना कहीं पायनियर का पहले चाहेंगे कि 50 को छुआ जाए क्योंकि पायनियर के पास भी अजय बहुत मजबूत बल्लेबाजी गेंदबाजी है. आरडी के कैप्टन और रईस बिल्डर के कैप्टन लास्ट ऑफिशियल कॉल. पहले सेमीफाइनल के टॉस के लिए पहुंचना है टॉस बॉक्स में. सन्मान्य ईश्वर हरी चौधरी यांना देखील आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करायचं आहे. ताडेगावचे प्रतिष्ठित नागरिक समाजसेवक मी आदरणीय विशाल पाटिल मुड़ते हुए सामना करेंगे मारूफ भाबे. 39 रन पायनियर 7 विकेट.
ओवर नंबर 5 चलता हुआ नॉन स्ट्राइक पर खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख ने जाकर उन्हें कुछ कहा है। वहां पर अल्ताफ शेख इस साल छोटी छोटी बहुत अच्छी बारियां खेल चुके हैं। विशाल पाटिल, बॉलिंग जबरदस्त हो रही है विक्टोरियन की तरफ से। विशाल राइट आर्म ओवर द विकेट। सन्मान्य ईश्वरजी चौधरी या मान्यवरांचं देखील या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठ मंचावर केलं जातं। अच्छा ड्राइव लॉन्ग ऑन पे 1 रन आता हुआ स्कोर में और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित सन्माननीय राजेश सुळके राजाबाई शिवसेना वाहतूक सेनाध्यक्ष भिवंडी तालुका यांना देखील करूया आपण सन्मानित। 41 रन 7 विकेटों के नुकसान पे ओवर नंबर 5 चल रहा है और पायनियर टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है इस आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। मारूफ बाबे 2 पर, अल्ताफ शेख अभी तक खाता नहीं खोल पाए और अभी तक उनको मौका भी नहीं मिला है। विशाल पाटिल इस मरतबा गेंद को खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ और गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। खराब अनुमान जावेद फारूकी का। रिप्ले में हम देखेंगे किस तरह से मारूफ बाबे ने इस शॉट को खेला। आड़े बल्ले से उछाल दिया था और पहले बाउंस पर गेंद सर के ऊपर से जाती हुई 4 रन। इस चौकी की मदद से पायनियर का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 7 विकेट। पायनियर का पहला टारगेट रहेगा अबव 50। इस मरतबा अच्छी वापसी, शफल होके खेलने की कोशिश, विकेटों के ऊपर से गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। ये देखिए बाल बाल बच गए वहां पर मारूफ बाबे। 45 रन 7 विकेट। विशाल पाटिल अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया मारूफ बाबे को। विकेट नंबर 8 गिरता हुआ पायनियर स्पोर्ट्स का। स्टंप का है क्योंकि अराउंड द लेग्स कहीं बैट्समैन बोल्ड हो रहे हैं। धन्यवाद सर। तर जाऊया आपण व्यासपीठावर मंचावर स्वागत आणि सन्मान करूया इताडे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच सन्मान्य जगनजी पाटील यांना आपण करूया सन्मानित। या स्पर्धेचे प्रणेते मान्य श्री निलेश हरिश्चंद्र चौधरी, मान्य श्री नितेश एनकर, मयूर चौधरी यांच्या शुभ हस्ते मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर केलं जातं। डॅसिंग अंदाज, डॅसिंग पर्सनॅलिटी, एक उत्तम असं व्यक्तिमत्व सन्मान्य जगनजी पाटील यांना ठिकाणी सन्मानित केलं जातं। खेल की शुरुआत करना है अंपायर्स। मायरा स्पोर्ट्स के बूम बूम मुनाफ शेख हमारे बीच में, आपका भी इस्तकबाल है। मायरा स्पोर्ट्स का भी दौर थोड़ा खराब चल रहा है। कुछ बड़े बजट की जो टीमें थी वो बॉक्स ऑफिस क्रिकेट पे पिट रही है। 45 रन 8 विकेट। गेंदबाजी में डेथ ओवर में हुसैन खान आए। ये आप देख सकते हैं संतोष शेट्टी साहब को, विद्यमान नगर सेवक भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के। अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि अगर 10 सेकंड के अंदर गेंदबाजी नहीं शुरू हुई तो 2 रन का पेनल्टी। सन्मान्य अतिथीगण, उपस्थित पाहुणे मंडळी, पुन्हा एकदा तुमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत, वेलकम।
खेल की शुरुआत होती हुई हुसैन खान सामना भिवंडी करेंगे। मनपाचे माजी नगरसेवक भिवंडीतील नामांकित असं व्यक्तिमत्व आणि या स्पर्धेसाठी ज्यांना तन मन धन आम्हाला अर्पित केलं, या स्पर्धेसाठी सर्वोपरी ज्यांचं सहकार्य आम्हाला लाभलं ते मान्य श्री साईनाथ भाऊ पवार। हुसैन खान 2 रन का पेनल्टी अनाउंस होने जा रहा है। सन्मान्य साईनाथ भाऊ पवार भिवंडी मनपाचे माजी नगरसेवक, धर्मराजा ग्रुपचे सन्मान्य अध्यक्ष निलेश चौधरी साहेबांचे परम मित्र, या स्पर्धेसाठी ज्यांचं अपार कष्ट अपार मेहनत आपण पाहिली, साईनाथ भाऊ यांचं देखील या मंचावर शुभ आगमन। वेलकम। रिवर्स शॉट खेला है क्योंकि अल्ताफ शेख की इनिंग बिना इस सोनू शॉट के देशमुख आपण देखील स्टेजवर या। सोनूजी आमचा आवाज, खऱ्या अर्थानं मी पप्पू भजागे तुमचं देखील मनापासून कौतुक करतो। या स्पर्धेसाठी तुमचं देखील अपार कष्ट अपार मेहनत आहे। धन्यवाद मोहन। बिना रिवर्स शॉट के अल्ताफ शेख की तो इनिंग हो ही नहीं सकती। ये उनका फैमिली शॉट है, खानदानी। 46 रन 8 विकेट। हुसैन खान सामना करेंगे बैट्समैन आर्यन भुईर। ओ बढ़िया गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई थी, लॉन्ग वे शफल होकर फाइन लेग की जानिब निकालना चाहते थे, थोड़ी गेंद नीची भी रही। पायनियर का स्कोर है 46 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। पायनियर जरूर चाहेंगे कि स्कोर 50 के ऊपर हो, विनोदजी काटेकर। लेकिन क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं। जो हुआ सो हुआ और जो हुआ वो अच्छा हुआ। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, स्ट्राइक को रोटेट किया अल्ताफ शेख के लिए। 1 रन बनता हुआ पायनियर के खाते में। स्कोर 47 रन 8 विकेट, 47 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। पायनियर आखिर की 3 गेंदें बची है इस इनिंग की। आरडी के कैप्टन लास्ट कॉल है और रईस बिल्डर के कैप्टन पहला सेमीफाइनल मुकाबला आपको टॉस के लिए आना है। हुसैन खान इस मरतबा लंबा हिट लेना चाहते थे, जमीन के सारे गेंद आउटफील्ड में, दूसरे की कॉल है और यहां आखिरकार गिरते पड़ते 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। 49 पे पहुंचा है स्कोर पायनियर का। कितनी गेंदें बची है डेथ ओवर की? 2 गेंदें बची है। पायनियर को जहां जरूरत है एक बड़े शॉट की, विक्टोरियन चाहेंगी कि ये 2 गेंदों में एक विकेट कम से कम वो निकाल दे। हुसैन खान अल्ताफ शेख के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाना है प्लीज प्लीज। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। अब जाकर साकिब खान ने उठाया, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 50 रन पूरे होते हुए 51 रन हुए पायनियर के। 1 गेंद बची है। क्या अल्ताफ शेख कोई बड़ा शॉट खेलेंगे? क्या हुसैन खान डॉट गेंद करेंगे? हमारे कमेटी के सभी मेंबर कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाए प्लीज। भूमिक हट जाना है प्लीज। हुसैन खान 1 गेंद बची है। स्कोर है 51, विकेट गिरी 8 पायनियर की। इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में मैगी 11 से टकराएंगी। उछाल दिया है, क्या गेंद मैदान के अंदर? यस, अल्ताफ शेख आउट। कुल मिलाकर 51-52 की चुनौती सेमी में पहुंचने के लिए रखी है विक्टोरियन के सामने। थँक्स, धन्यवाद सर। पुन्हा एकदा सर्व क्रीडारसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत। धर्मराज्य चषक 2022 या स्पर्धेचा आगाज, स्पर्धेचा शेवटचा अंतिम दिवस, मान्यवरांची मांदियाळी देखील आपण पाहतोय। नुकतेच ज्यांचं शुभ आगमन होत आहे, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक आणि भारतीय जनता पार्टीचे शहर अध्यक्ष सन्मान्य संतोष शेट्टी साहेब यांना देखील करू या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण सन्मानित। या स्पर्धेचे प्रणेते, या स्पर्धेचे मुख्य ऑर्गनायझर मान्य श्री निलेश हरिश्चंद्र चौधरी साहेब, विठोबा नाईक साहेब, मयूरजी चौधरी आणि
नितेश एनकर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शोभा असते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर करायचं आहे. तर जाऊया आपण व्यासपीठावर मंचावर स्वागत आणि सन्मान करूया भिवंडीतील एक नामांकित असं व्यक्तिमत्व, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक आणि भारतीय जनता पार्टीचे शहर अध्यक्ष आदरणीय संतोष शेट्टी साहेब यांना या ठिकाणी केलं जातं सन्मानित. सन्माननीय संतोष शेट्टी साहेब यांना देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जातं. विठोबा नाईक असतील, सानित भाऊ पवार असतील, नितेश एनकर असतील, मयूर चौधरी असतील आणि या स्पर्धेचे प्रणेते सन्मान्य निलेश चौधरी साहेब असतील. तर अण्णा तुम्हाला देखील विनंती असेल की आपण या स्पर्धेच्या संदर्भात एक दोन शब्दामध्ये आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. ओव्हरऑल दी स्पोर्ट्स आयोजित धर्मराज ग्रुपचे सर्व आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते निलेश चौधरीजी आणि मंचावर उपस्थित आपल्या सर्वांचे लाडके भाऊ साईनाथ पवार साहेब, बिल्लाजी, एंकरजी आणि सर्व धर्मराज ग्रुपचे सर्व सदस्य. आज हे ग्राउंड बघून मला खरं आत्ता ठाकूर साहेब बोलले का किती मेहनत केली आम्ही लोकांनी इकडे ह्याच्यात, आणि विलास पाटील पण काय बोलून गेले का फोकस बिकस लावतो. पण सर्वात प्रथम का या पुरे प्रभाग 3मध्ये कुठे ग्राउंडच नाही आपल्याला. कमी 2-2.5 लाख आपण राहतो, कुठे पण ग्राउंड नाही. एक काटेका ग्राउंड आहे, म्हणजे खेळणं म्हणजे स्टेडियम टाईप कुठे असा ग्राउंड नाही. एक चांगला ग्राउंड, एक ग्राउंड असंच बनला नाही. यासाठी निलेश चौधरी, आमचे भगवान ठाकूर खूप काही कष्ट केले. म्हणजे जेव्हा पण डेव्हलपमेंटसाठी महापालिका विषय यायचे तो त्यात आमचे कमिशनर मना करायचे, पण हे लोक भांडण करून कसा भरणी केला हे आम्हाला माहिती आहे आणि चौधरीला माहिती आहे. तरी पण एक आज इकडे येऊन बघतो तो एक अलग वातावरण आहे. मला वाटलं का छोटा मोठा का असेल, पण निलेश चौधरी कधी छोटा मोठा करत नाही, कधी मग करतो का अलग हटके करतो. आज पण भिवंडी शहराचाच आपण एक चांगली इकडे टीम घेतली आहे. आणि मी परत धर्मराज ग्रुपचे सर्व सदस्याचा, वरालदेवी मित्रमंडळ सर्व सदस्यांचा खूप धन्यवाद करतो का तुमच्या मुले एक चांगल्या प्लेयरला खेळायला एक संधी भेटली. म्हणून परत निलेश चौधरी तुम्हाला हे आता तुम्ही चालू जे केलं आहे हे 1 वर्ष ठेवू नका, याला दरवर्षी करा. इकडे 1 लोक आपल्याकडे आणि तुमच्याकडे इकडे भावी लोक खूप आहे. भविष्यात यांना नकर्ते होतील, अजून तुमचा खर्चामध्ये कमी होणार नाही. परत मला इकडे बोलायची संधी दिली म्हणून. आणि आज खूप चांगला दिवस आहे. सकाळी अटल बिहारी वाजपेयीचा वाढदिवस होता आणि मन की बात ह्या स्टेडियममधून तुम्ही लोकांना मोदीजी काय केलं एक महिन्यात ते पूर्ण दाखवला. त्याबद्दल पण तुमचा खूप धन्यवाद. तुमचा जे कार्यक्रम आहे आज आम्ही जेव्हा BJP कार्यालयात पाठवलं वरती, तो त्यांना पण खूप आनंद झाला का भारतीय जनता पार्टी कुठली पण संधी पक्षासाठी सोडत नाही. क्रिकेट मॅचमध्ये पण तुम्ही लोकांनी मन की बात दाखवलं, त्यात चांगली एक पोच तुमच्या कामाची आज प्रदेशमध्ये पोचलं का. जसं तुमचा कार्यक्रम झाला पूर्ण तुमची जे पण फोटो जे पण नंदन गुप्ताने घेतलं होतं ते पक्षाकडे पाठवलं आणि एक चांगली त्याच्यात पोच पावती भेटली. त्यासाठी पण तुम्हाला खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्स, धन्यवाद सर. खऱ्या अर्थाने तुम्ही देखील या स्पर्धेच्या संदर्भात चांगलं कमेंट्स, चांगलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त केलं. त्यानंतर तुम्हाला विनंती असेल आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. यस भाऊ आपण देखील जायचं आहे. थोड़ी देर में हमारे बीच RD ढाबा और RD स्पोर्ट्स के करता धरता और RD ढाबा के ऑनर और GCA के अध्यक्ष विनोद पाटिल साहब का भी आगमन होने जा रहा है और टॉस होने जा रहा है. दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट आतिश पाटिल RD के कैप्टन एंड ऑल द बेस्ट योगेश भोईर प्राइज बिल्डर के कैप्टन.
पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज मोहन भुईर का अंदाज भी जबरदस्त है, तन मन धन काफी फेमस हुआ है। मोस्ट 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 वेलकम संतोष शेट्टी साहब, डैशिंग डायनामिक नगर सेवक भिवंडी निजामपुर, और वो तो मुझे पता है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर के काफी करीबी दोस्त हैं। सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए सर आपको भी आना है। और 2-5 लाते तो पूरी टीम होती, सेमी खेलती। सिक्का मैं आपको बताता हूं, एक तरफ वो चषक जिसकी चर्चा टेनिस क्रिकेट में चल रही है, धर्मराजा चषक, और एक तरफ वड़ाल देवी ताडाली स्पोर्ट्स। कॉल कौन करेगा? मैं करता हूँ। धर्मराजा चषक। धर्मराजा चषक, यस, और आया भी धर्मराजा चषक है। वाह वाह संतोष शेट्टी, वाह शेट्टी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चौधरी साहब और तमाम हमारे मान्यवर, आप सभी का बहुत विशेष धन्यवाद। यस, टॉस को जीता है रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने। योगेश कैसा लग रहा है? बहुत ही चार्मिंग सेमीफायनल। खूप छान वाटतोय आणि इथे सेमीफायनल खेळायला खूप मजा येईल. नाणेफेक जिंकले, काय निर्णय? फलंदाजी करणार. काय उद्देश आहे याच्या मागे? फ्रंट लाईटमध्ये मॅच आहे, जास्तीत जास्त स्कोर करण्याचा प्रयत्न राहील. प्ले 11 मध्ये कुठले चेंजेस? जशी सिच्युएशन असेल त्याप्रमाणे प्लेयर उतरले जातील. आणि कॅप्टन आपल्यावरून काय देणार? 100% प्रत्येकाने प्रत्येकाचा 100% द्यावा हीच इच्छा असेल आणि सेमीफायनल चांगल्या प्रकारे होईल. अटीतटीचा सामना होईल नक्कीच. ऑल द बेस्ट। आतिश पाटिल हैं, बहुत बार मेरे साथ आप फाइनल के टॉस को आए हैं, आज सेमीफाइनल के। सबसे पहले बताइए, टीम सेमीफाइनल में पहुंची, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और पूरी टीम अच्छे खेली, उससे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। 2 हॉट फेवरेट टीम को आपने हराया, धनेश नंबर 1, चैलेंज नंबर 2। टीम का मॉडल कहाँ देख रहे हैं? अभी फाइनल ही खेलना है। और क्या लगता है टॉस जीतते तो क्या करते? हम लोग भी बल्लेबाजी करने वाले थे, अभी देखते हैं। ये बताइए कि इस मैच में किरण पाटिल और पंकज माली से क्या अपेक्षा है? बहुत अच्छी बॉलिंग की दोनों मैच में भी उन्होंने। अभी ये बहुत कुशल मैच है, तो ये मैच में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों बॉलर, और दर्शन भी है। उम्मीद करें कि बारसी कप के बाद धर्मराजा चषक पे आपकी नजर जरूर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज व्यासपीठावर मंचावर यंग जनरेशन, युवा नेतृत्व, सन्माननीय विराजी पवार उपस्थित आहेत. बढ़िया गेंद फाइक अंसारी द्वारा। बहुत ही बड़ा मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल मैच। और इसी बीच RD 4440 ओली टीम के ओनर और मशहूर उद्योगपति आदरणीय विनोद पाटिल साहब का यहाँ पर शुभ आगमन होता हुआ, और बीच मैदान में विकेट का पतन। आदरणीय विनोद पाटिल साहब, आपका धर्मराजा चषक 2022 में हार्दिक हार्दिक स्वागत। वेलकम। डासिंग अंदाज, डासिंग पर्सनॅलिटी, भिवंडी क्रिकेट असोसिएशन रेग्युलर ग्रामीण या संघटनेचे सन्माननीय अध्यक्ष विनोदजी पाटील यांच्या ठिकाणी शुभ आगमन होतं। वेलकम। जहाँ ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के विद्यमान अध्यक्ष है। वेलकम विनोदजी। डासिंग अंदाज, डासिंग पर्सनॅलिटी, आणि खऱ्या अर्थाने मी कौतुक देखील करेन, व्यवसायाच्या दृष्टीने अग्री समाजाचं एक पाऊल पुढं। विक्टोरियन स्पोर्ट्स की निराशाजनक शुरुआत। पहली गेंद पर शेखर दलवी आउट हुए, और पहले ओवर में 5वीं गेंद पर हसन आउट हुए हैं।
नए बैट्समैन जावेद क्रीज पर, सलामी बल्लेबाज के तौर पर रजाक आए थे, नॉन स्ट्राइकर सेंड पर है। टारगेट इस मैच में 52 रनों का सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स के सामने रखा है पायनियर स्पोर्ट्स ने। दो पर दो नाजुक स्थिति है। हालांकि पायनियर स्पोर्ट्स की भी शुरुआत कुछ इस तरह की रही थी, 1 पर 2 विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद वीरेश पाटिल ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेले, 21 रनों की पारी खेली और पारी को अच्छी दिशा में लेकर चले गए थे। अच्छा फाइटिंग टोटल बनाया गया है, 6 ओवर्स में 52 रनों का टारगेट उतना भी आसान नहीं है यहाँ पर ताड़ाली में। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल किया है जावेद ने। हॅलो सोनू देशमुख, आपण जर कुठं प्रेक्षकमध्ये असाल तर प्लीज आपण देखील मान्यवर कक्षामध्ये, सोनूजी आमचा आवाज तुम्हापर्यंत पोहोचत असेल तर प्लीज, नितीनजी खोपडे आमचा आवाज तुम्हापर्यंत पोहोचत असेल आपण देखील मान्यवर कक्षामध्ये, नितीनजी तुमचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत। कोरोना काळात तर धर्मराजा सेवा पंच आपण संस्थेने 2 मिनिटं केलेली फक्त सामना विविध थांबवायचा कार्ये आहे। पंचांना विनंती आहे फक्त 2 मिनिटं आपण सामना या ठिकाणी थांबवायचा आहे। तर जाऊया आपण व्यासपीठावर मंचावर धर्मराजा चषक पहिल्या दिवसापासून ते 2022 संपूर्ण चे लॉकडाऊन प्रणेते मध्ये 4,82,000 मान्य श्री लोकांना निलेश जेवण हरिश्चंद्र वाटप। चौधरी साहेबांना करूया धर्मराजा सार्वजनिक वरालजी किचनची स्पोर्ट्स ताडालीच्या कोकण वतीनं आयुक्तांकडून सन्मान, पाहणी, कोकण त्यांच्या विभागीय ठिकाणी आयुक्त यथोचित स्वागत आणि शिवाजीराव सन्मान दौंड, या जिल्हाधिकारी ऑर्गनाइज कमिटीच्या राजेश वतीने केलं नरवेकर, जातं। उपविभागीय वरालजी स्पोर्ट्सचे सर्व मेंबर आपण स्टेजवर या, साहेबांच्या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर त्यांच्या वतीने केलं जातं। वरालजी स्पोर्ट्सचे सर्व सन्माननीय सदस्य या स्पर्धेचे प्रणेते, या स्पर्धेचे मुख्य ऑर्गनायझर, या स्पर्धेचे कर्ता धर्ता, या स्पर्धेचे सर्व निलेश हरिश्चंद्र चौधरी साहेबांचं या ठिकाणी ऑर्गनाइज कमिटीच्या वतीने केलं जातं विशेष स्वागत आणि सन्मान। सन्माननीय विठोबा नाईक असतील, साईनाभाऊ पवार असतील, नितेश शैनकर असतील, त्यानंतर आपण जाऊया पुन्हा एकदा व्यासपीठावर मंचावर। मी मान्य श्री निलेश चौधरी साहेबांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते एक डॅसिंग अंदाज, डॅसिंग पर्सनॅलिटी आणि खऱ्या अर्थानं उद्योग समूहामध्ये अग्री समाजाचं एक पाऊल पुढं यशाचं शिखर ज्यानं गाठलं, व्यवसायाच्या माध्यमातून एक उत्तम ज्यांची कामगिरी आपण पाहिली, ते ग्रामीण क्रिकेट संघटनेचे सन्माननीय अध्यक्ष विनोदजी पाटील यांना देखील करूया आपण सन्मानित। भिवंडी क्रिकेट असोसिएशन संघटनेचे सन्माननीय अध्यक्ष सन्माननीय विनोदजी पाटील यांना देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जातं। नागरिक आपण जर कुठं प्रेक्षकमध्ये असाल प्लीज आपण मान्यवर कक्षामध्ये या। तानाजी पाटील, पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत। आपण पाहतो क्रिकेट फेस्टिवल, क्रिकेटचा बिग इव्हेंट, क्रिकेटचा बिग शो, क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा जुनून, क्रिकेटचा जल्लोष, क्रिकेटची दत्ताण, क्रिकेटचा महाकुंभ मेळा। सन्माननीय बाळराम ठाकूर या ठिकाणी उपस्थित, त्यांना देखील आपण करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित। बाळा ठाकूर, बाळादा आपण देखील पुढे या। पद्माकरजी भोईर साहेबांचे आत्तेभाऊ आहेत, आपण देखील पुढे या। नितीनजी खोपडे यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे। नितीनजी खोपडे,
बालादा आपण देखील पुढे या. पद्माकर भोईर साहेबांचे आत्तेभाऊ आपण देखील पुढे या. हॅलो. हॅलो. नरेशजी चव्हाण यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. बहुत ही सुंदर लॉफ्टेड कवर ड्राइव देखने को मिला रजाक के बल्ले से. पहला चौका इस पारी का. टीम का स्कोर 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. मारूफ गेंदबाजी करते हुए इस बार छोटी गेंद पुल करना चाहते थे, मिस टाइम कर बैठे, लेकिन किस्मत वाले हैं बल्लेबाज कि कोई भी खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं था. शॉर्ट स्क्वेअर लेग की तरफ फील्डर वहां पर नहीं है. नरेशजी चव्हाण यांना देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जातं. साहेबांचे कट्टर समर्थक नरेशजी चव्हाण यांना देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जातं. त्यानंतर सागरजी धनगर आपण देखील पुढे यायचं आहे. सागरजी धनगर. इस बार बढ़िया शॉट गैप ढूंढा है जावेद ने. थ्रू द कवर्स बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे एक वरिष्ठ अधिकारी, आरोग्य विभागातील एक वरिष्ठ अधिकारी सागर धनगर यांना देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जातं. धन्यवाद. ओट टू कॉमेडी बॉक्स. धन्यवाद मोहन भोईर सर. 2 रन मिले जावेद को. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रनों पर पहुंचा है. पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए फाइक अंसारी ने. कप्तान ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और मारूफ भाबे का ओवर अभी तक थोड़ा सा खर्चीला कहा जा सकता है. 2 गेंदें अभी भी इस ओवर में शेष है. स्पीडअप करना है खेल को. खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से ये रिक्वेस्ट है कि खेल को थोड़ा स्पीडअप करें. इसके बाद 2 सेमीफाइनल्स और फाइनल मुकाबला बाकी है. गेंद हवा में, फील्डर ने डाइव लगाई, गेंद को कैच किया है और जावेद का काम हुआ तमाम. आशिर अंसारी, गजब का कैच. इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर. पैडल स्कोप की कोशिश. बल्ले का फ्लो बिल्कुल भी नहीं था, केवल गेंद को आने दिया था बल्ले पर और मिस टाइम कर बैठे. और क्या कमाल का कैच लिया है. आशिर अंसारी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम. ये देखिए फिर से बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगी और हवा में चली गई थी. शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में जबरदस्त कैच. जावेद का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया है मारूफ भाबे ने. लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ये विकेट आशिर अंसारी का है. जिस तरह से कैच लपका है उन्होंने, और ये तीसरा झटका लगा है 11 के स्कोर पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स को. नए बल्लेबाज हुसैन खान लॉन्ग हैंडल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं. स्थिति थोड़ी नाजुक है. शुरुआत में विकेटें गिर रही है, लेकिन आज जो मैचेस हमने देखे हैं, एक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला और 3 क्वार्टर फाइनल मैचेस इससे पहले, सभी आखिरी गेंद तक चले गए हैं. और इतना ज़्यादा रोमांच शायद ही कभी दर्शकों ने देखा होगा किसी टूर्नामेंट में. हालांकि कैच लेते वक्त वहां पर इंजर्ड हुए हैं आशिर अंसारी. देखना है मैदान में रुकते हैं या नहीं, या फिर कोई सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैदान में पहुंचता है. इस समय खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है. शुरुआत अच्छी की थी जावेद ने. अच्छे नियंत्रण के साथ शॉट्स लगा रहे थे. एक लेट कट भी खेला था उन्होंने. एक बैकफुट पंच हमने देखा, लेकिन ये बड़ा ही अटपटा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में वो आउट हुए. और बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर, मैं समझता हूँ, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी है. पहले एक सीनियर बैटर उनके आउट हो चुके हैं, शेखर दलवी.
उसके बाद एक युवा खिलाड़ी हसन खान आउट हो चुके हैं। रजाक ने एक चौका जड़ा है 6 पर बैटिंग करते हुए, और अब हुसैन खान नंबर 5 पर आए हैं खेलने के लिए। आदरणीय विनोद दादा पाटिल, इनको आप देख सकते हो, ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन भिवंडी के विद्यमान अध्यक्ष है, और RD440 ओली टीम जो कि भिवंडी सिटी क्रिकेट की एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, उस टीम के स्पॉन्सर हैं। सेमीफाइनल में अगले मैच में हम RD टीम को देखेंगे। चुनौती रहेगी रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। टॉस हो चुका है सेमीफाइनल मैच का, रईस के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। इस समय केवल और केवल धर्मराजा चषक 2022 की धूम है पूरे भिवंडी में, और न सिर्फ भिवंडी में बल्कि भिवंडी के बाहर भी कई सारे दर्शक इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं, खासतौर पर यूट्यूब के जरिए प्रिंस मूवीज पर। रोचक और दिलचस्प क्रिकेट पूरे दिन भर देखने को मिला है, और अंडर फ्लड लाइट्स भी काफी रोमांचक क्रिकेट देखने को मिल रहा है। तो खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। हुसैन खान, देखना है किस तरह से पारी को आगे लेकर जाते हैं, क्या अप्रोच उनका रहता है, ये देखने वाली बात होगी। मारूफ भाबे चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, करारा स्ट्रोक, बॉलर बैक पास ड्राइव, मिसफील्ड, हाना चल रही है वहां पर, और आखिरकार रन नहीं लिया गया है। हालांकि सिंगल मिल सकता था, लेकिन तालमेल की कमी। रजाक ने तो पहले ही शायद स्पष्ट नकार दिया था। शॉट अच्छा था, कैच लपकने की कोशिश फॉलो थ्रू में, लेकिन बहुत मुश्किल अवसर था। फाइक अंसारी से थोड़ा मिसफील हुआ था स्ट्रेटिश मिड ऑन पर, लेकिन अच्छी रिकवरी की उन्होंने। और देखिए हुसैन बहुत आगे निकले थे, लेकिन वापस लौटना पड़ा उनको अपने क्रीज में। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 4 ओवर्स में 41 रनों की आवश्यकता ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। टेनिस बॉल क्रिकेट का यह अद्भुत शो आप तक लाए हैं वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली, और जिनके सम्मान में ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। धर्मराजा अर्थात आदरणीय नीलेश दत्ता चौधरी साहब, आज रात आखिरी रात है इस टूर्नामेंट में, और कल सुबह यहाँ पर एक और टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है। न्यू 40+ का एक बिग इवेंट रहेगा, स्वर्गीय रतन शेठ प्रतिष्ठान कप 2022। तो वो टूर्नामेंट भी देखना मत भूलिएगा। मेहुल स्पोर्ट्स एंड वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली द्वारा आयोजन उस टूर्नामेंट का, खासतौर पर मोहन भुईर सर फोकस मैन है उस टूर्नामेंट के। और ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि किस तरह से कोरोना पीरियड में समाज सेवा की गई आदरणीय नीलेश दादा चौधरी साहब की ओर से। बहुत ही कठिन समय था हम सभी के लिए। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी पूरी तरह से जनता के साथ बने रहे साहब। धर्मराजा सेवा संस्था जिनकी ओर से ये कार्य किए गए। चलते हैं खेल की तरफ। डोंबिवली से हमारे बीच श्याम जोशी साहब भी पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। 11 पर 3 गेंदबाजी में परिवर्तन। आर्यन भोईर आक्रमण पर आते हुए। हॅलो, वेलकम. सन्माननीय नितीनजी बजागे यांचं देखील या ठिकाणी शुभ आगमन. वेलकम. या स्पर्धेमध्ये तुमचं देखील मनापासून स्वागत. ऑन द ऑफ खेला है, हालांकि भले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया, लेकिन सामने खिलाड़ी मौजूद है। चूंकि अब फील्डिंग की जो पाबंदियां थी पहले 2 ओवर्स में वो हट चुकी है, तो ज़्यादा खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आ रहे हैं। फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुके हैं। नॉन पावर प्ले फेज की शुरुआत हुई है। पहली गेंद पर सिंगल। आर्यन भोईर ने दबाव की स्थिति में बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी न्यू बी इंडियन के विरुद्ध प्री क्वार्टर फाइनल मैच में, और क्या कमाल का वो भी मैच रहा था। 16 गेंदों में 15 रन न्यू बी इंडियन टीम नहीं बना पाई। पीछा कर रहे थे गेंद का, लेकिन दिशाहीन गेंद है। बहुत संभल कर यहाँ पर खेलने की कोशिश करनी होगी कहीं ना कहीं। ओहो,
देखिए आखिर में उन्होंने अपना बल्ला रोक दिया, नहीं तो बाहरी किनारा लग सकता था। स्कोर अब 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कुल मिलाकर 52 रनों की चुनौती इस मुकाबले में विक्टोरियंस के सामने। इस बार फिर से भटक गए दिशा से, विकेट के दोनों तरफ गेंदबाजी करने का प्रयास। इससे पहले ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, इस बार लेग स्टंप के बाहर लगातार दूसरी वाइड। और जो दबाव बना है बल्लेबाजों पर, इस तरह की गेंदबाजी होती रही तो जरूर दबाव थोड़ा सा हटेगा। एक अच्छे पार्टनरशिप की आवश्यकता है विक्टोरियन स्पोर्ट्स को इस मैच में मजबूत स्थिति में जाने के लिए। यहाँ से और 38 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, जबकि अभी भी 23 गेंदों का खेल शेष है। अगली गेंद इस बार अक्रॉस द लाइन खेला है, बल्ले के बीचों बीच तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब। इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर ऑन साइड में फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। दर्शकों का जो साथ मिला है इस टूर्नामेंट को, जो रिस्पांस मिला है वो गजब का है। और पहले ही दिन मैंने जिक्र भी किया था, मुझे ऐसे रह रहकर लग रहा था कि पहला दिन है या फिर फाइनल डे है, और आज तो दोपहर से ही हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त संख्या में दर्शक सभी स्टैंड्स में मौजूद है। कमाल का ये टूर्नामेंट है। कॉम्बॉक्स में मेरे साथ अब मशहूर कमेंटेटर, एक सीनियर कमेंटेटर डॉक्टर मोरेश्वर गवली सर जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। खूपच थँक्स। अच्छी स्थिति में बना हुआ ये मैच। 15 पर 3 इस समय विक्टोरियन स्पोर्ट्स। आर्यन का पहला ओवर है, अपील हो रही है, लेकिन केवल उत्साह नजर आया इस अपील में। हालांकि लेग बाइज के रूप में रन मिला है और बल्लेबाज थोड़े चोटग्रस्त हो गए हैं। पहले आशिर अंसारी लेट गए थे ज़मीन पर कैच लेने के बाद, और अब बल्लेबाज थोड़े से घायल हो गए हैं। यस, 12th मॅनने पाणी घेऊन जायचं आणि बघायचं आहे दुखापत गंभीर नाही का बघायचं, जाऊन त्वरित जायचं आहे। थोडंसं मार लागलेला आहे। 12th मॅन आमच्या व्हॉलंटियर्सनी सुद्धा त्या ठिकाणी जायचं आहे। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा गंभीर चोट ना हो, क्योंकि देखिए टीम कोई भी खेले, सारे खिलाड़ी अपने हैं। येस, डेफिनेटली जास्त सिरियस इंजुरी नसावी मी अपेक्षित करतो। तो खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। समीकरण इस मैच में अब 21 गेंदों में 36 रनों की ज़रूरत। ये खूबसूरत स्टैंड्स आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्मदिन, उनकी जयंती है, और वो जयंती भी यहाँ पर मनाई गई सुबह के सत्र में। येस, आमचा कमेंट्री बॉक्स काफ़ी एंजॉय किया हमने इस टूर्नामेंट को। पहले ही दिन से ज्ञानेश्वर मुकादम हमारे बीच में है, जो कि ऑफिशियल स्कोरर है, और उनकी तारीफ तो बनती है, क्योंकि कमेंटेटर्स कई सारे रहते हैं हम देखते हैं, लेकिन स्कोरर एक ही है और बड़ी जिम्मेदारी रहती है उनके कंधों पर। देखिए हमारा ध्यान थोड़ा सा यहाँ वहाँ जाए तो चल सकता है, लेकिन स्कोरर एक गलती करे तो मैच का रिझल्ट बदल सकता है। नाही, खूप चांगलं स्कोरिंग संपूर्ण स्पर्धेमध्ये त्यांनी केलेलं आहे। आणि आपण बघितलं ते जे महाराष्ट्राचे सदाबहार कॉमेंटेटर 3-in-1 त्याला मी नेहमी संबोधतो, कारण इट्स ओनली इन महाराष्ट्र ज्यांचं प्रभुत्व आहे मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीवर, अजय घरत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोरेश्वर गवली सर। देखिए भिवंडी में काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स हैं, और अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स को जब आप देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ख़ास तौर पर सिद्दीक भाबे, आपके साथ जब कॉम्बॉक्स शेयर करने का मौका मिलता है तो ज़रूर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। नाही, अजय घरत ॲज अ सिनियर कॉमेंटेटर मग गेली जवळपास मी 35 ते 38 वर्ष समालोचन करतोय, आणि खूप बरं वाटतंय की कॉमेंटेटर, एक टॅलेंटेड कॉमेंटेटर आमच्या भिवंडीमध्ये निर्माण होत आहेत। अजय घरत खास करून खूप अपेक्षा असतात आमचा, जेव्हा जेव्हा मेगा इव्हेंट असतो तेव्हा खूप अपेक्षा असतात। नो डाऊट सिद्दीक भाबेसुद्धा एक उत्कृष्ट समालोचक आहेत, आमचे समालोचक परिवार आहे, खूप चांगलं समालोचक त्या ठिकाणी आहेत। परंतु मला एक अभिमान वाटतो की मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीवर प्रभुत्व असणारे महाराष्ट्राचे एकमेव म्हणजे असं म्हणेन मी की समालोचक अजय घरत आहेत। कारण मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये समालोचन करतायत, परंतु समालोचन करणं आणि प्रभुत्व असणं ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे। खेल की तरफ लौटेंगे एक बार फिर से। फिलहाल वीआईपी डाइस का नज़र आपके स्क्रीन पर है, और वीआईपी डाइस भी बहुत ही आलीशान है,
क्योंकि हमारे मेहमान भी उतने आलीशान हैं। यस विनोददादा पाटील या ठिकाणी आमच्या VIP कक्षामध्ये GCAचे विद्यमान अध्यक्ष आणि क्रिकेटच्या विकासाचे सातत्याने त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. GCAचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत, त्यांचं आत्ताच आगमन झालेलं आहे आणि त्यांचा संघसुद्धा पाहतोय आपण. RD 4440ची ओवळी खूप चांगली कामगिरी या संघाने आतापर्यंत केलेली आहे. देखना है रजाक पूरी तरह से तंदुरुस्त है या नहीं, खेलने के लिए तैयार हो पाते या नहीं, और बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रहने वाली है मेरे ख्याल से, क्योंकि 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो चुके हैं. ओपन करने आए हैं रजाक, एक बाउंड्री भी जड़ी है उन्होंने, और यदि वो मैदान से बाहर जाते हैं तो फिर और भी स्थिति नाजुक हो सकती है विक्टोरियन स्पोर्ट्स की. इस समय 16 पर 3 है. ॲब्सोल्युटली इट्स विल बी द बिग ब्लो. जर तो खेळू शकला नाही रजाक तर मात्र एक मोठा धक्का ठरू शकेल, तो म्हणजे विक्टोरियन संघाला. और इस समय जो चित्र हम देख रहे हैं मैदान में, दानिश काजी नजर आ रहे हैं, तो शायद रिटायर्ड हर्ट हो रहे हैं. येस ऑनफिल्ड अंपायरने त्या ठिकाणी आमच्या पंचांबरोबर चर्चा केलेली आहे. आमचे या ठिकाणी पदाधिकारी जे आहेत भाविक बजागे हे सुद्धा त्या ठिकाणी गेले. 21 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को. येस अमोल चौधरी असतील, भाविक बजागे, त्याचबरोबर भावेश बजागे, हर्षल चौधरी, त्याचबरोबर धीरज बजागे, कुणाल बजागे, आकाश वळसे, कृष्णा गट्टे, अमित जाधव, त्याचबरोबर विकी नाविक, त्याचबरोबर प्रेमनाथ सूर्यवंशी आणि आत्ताच आपण बड्डे बॉय याचा बड्डे साजरा केला ते म्हणजे माधव सिंग, प्रणीत चौधरी, त्याचबरोबर कीर्तिराज जडेजा. खूप अपार मेहनत या सर्वांनी घेतलेली आहे. करण बजागे खूप अपार मेहनत त्यांनी स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी घेतलेली आहे. खास करून या स्पर्धेचे प्रणेते निलेशदादा चौधरी साहेब यांच्या खांद्याला खांदा लावून एक अपार मेहनत त्यांनी स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी घेतली. और पूरे टूर्नामेंट में जो भोजन की व्यवस्था की गई है खिलाड़ियों के लिए, पूरे स्टाफ के लिए और मेहमानों के लिए, क्या स्वादिष्ट भोजन है. अनिल मात्रे जिन्होंने भोजन बनाया, उनके हम शुक्रगुजार हैं. खेल की शुरुआत, स्विच हिट, गेंद हवा में है, फील्डर पीछा तो कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे. गेंद मैदान के बाहर, 6 रन. यस काय फटका खेळलेला आपण रिप्लेमध्ये पाहूया. स्विच हिट, चेंडू स्क्वेअर इज थर्ड मॅन, सीमा रेषेच्या बाहेर जातोय. हे लांब पल्ल्याचा षटकार, 121 षटकार. ये शॉट्स इतने आसान नहीं रहते हैं स्विच हिट, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस खिलाड़ी इन स्ट्रोक्स की करते भी है. येस प्रॅक्टिस आणि सराव करावा लागतोच आणि फार अचूकता असावी लागते. क्विक डिसिजन घेणं सुद्धा फार महत्त्वाचं असतं. काही सेकंदात फटका खेळण्यासाठी डिसिजन घ्यावा लागतो. थोड़ा सा ब्रेक रहा, उसके बाद खेल की फिर से शुरुआत हुई और सिक्सर आया पहली गेंद पर हुसैन खान के बल्ले से. स्कोर उछलता हुआ 22 पर पहुंचा है. आर्यन बोयर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, थोड़ी कम उछाल वाली गेंद थी, बल्ला गेंद के ऊपर से गुजरता हुआ. ये देखिए बढ़िया नोकझोंक चल रही है. पायनियर स्पोर्ट्स के काफी समर्थक हमारे दाहिनी तरफ नजर आ रहे हैं और हर टीम को यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिला है. अच्छे खेल की सराहना यहाँ के दर्शकों ने की है. पुल पर लेकर लॉफ्ट कर दिया है, फील्डर है सामने और कैच ड्रॉप. अल्ताफ शेख द्वारा गलती, 2 रन पूरे. गेंद भी नीचे गिर गई और खिलाड़ी भी नीचे गिर गए थे. इतना भी मुश्किल अवसर नहीं था मेरे ख्याल से. ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस बनाकर खेला उन्होंने. बहुत ज़्यादा तेजी से दौड़कर आए थे, जिस वजह से अपना संतुलन गवा बैठे और कैच भी गवा दिया. 24 पर 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. बचे हुए 3 ओवर्स में 28 रनों की आवश्यकता है. नाही नक्कीच झेल तितकासा कठीण नव्हता. खरं तर अशा प्रकारचा झेल घ्यायला हवा,
कारण भरपूर वेळ होता, कारण सीमारेषेवर तुम्ही जेव्हा असता तेव्हा तुमच्याकडे भरपूर वेळ असतो. झेल घेण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करायला हवेत. प्रयत्न केला होता मात्र झेल घेऊ शकला नाही आहे. कॅचेस विन द मॅचेस. देखिए जो स्टैंडर्ड है टूर्नामेंट का, जो BC4 फॉर्मेट का स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार हम कह रहे हैं कि ये कैच लपकना चाहिए था फील्डर को. तर आपण पाहतोय की 24 धावा, 3/24. 3 षटकाचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि अजूनही 28 धावांची आवश्यकता, म्हणजे नेट टू नेट फाईट म्हणता येईल. कैलाशवासी महादेव बचा के, कैलाशवासी हेमंत बचा के, उनके नाम पर आकर्षक स्टैंड. खेल को स्पीड अप करना है. गुजारिश जो है खिलाड़ियों से कि ज़्यादा विलंब ना करे, ज़्यादा समय बर्बाद ना करे प्लीज़. यस, वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे. फाइक अंसारी आक्रमण जारी रखते हुए कप्तान का दूसरा ओवर, बल्कि दूसरे स्पेल में आए हैं. पहला ओवर किया था उन्होंने, दूसरा ओवर मारूफ ने किया था. तो बॉलिंग में पहले परिवर्तन हुआ, आर्यन भोईर को आक्रमण पर लाया गया और अब फिर से फाइक अंसारी आक्रमण पर आते हुए 2 विकेटें चटका चुके हैं पहले ओवर में. प्लेन मिस, गलत लाइन पर खेल बैठे और गेंद की रफ्तार को ठीक तरह से परख ही नहीं पाए थे, ना ही उसकी लेंथ को ठीक तरह से रीड कर पाए थे. यस, अगदी जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न बघायला मिळाला. चेंडूवर तुमची नजर असणं गरजेचं असतं, कारण कित्येक वेळा आपण पाहतोय नजर हटी दुर्घटना घटी. रजाक अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं चोट लगने के बावजूद भी. और फिर से छकाया, चतुराई भरी गेंदबाजी. फाइक अंसारी आमतौर पर बहुत तेज करते हैं, लेकिन अब देखिए कैसे उंगलियां फेर रहे हैं कटर. यस, खूप चांगला चेंडू बघायला मिळाला आणि टर्न झाला, वळला आणि उजव्या स्टेजच्या बाहेर निघून गेला. खूप चांगली गोलंदाजी. या सिच्युएशनमध्ये अशा प्रकारची गोलंदाजी. फाइक अंसारी अच्छी तरह से जानते हैं कि अंडर फ्लड लाइट्स कटर्स बहुत ही कारगर साबित हो रही है यहाँ पर ताड़ाली में. ताड़ाली के रामचंद्र दादाजी पाटिल एंड कृष्णा काना चौधरी ग्राउंड पर यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है. इस बार शफल कर चुके थे, फिर से बड़ा हिट लेने की कोशिश, लेकिन फिर से बात बनी नहीं और फिर से बीट हुए हैं. यस, लागोपाठ 3 चेंडू हे निर्धाव केलेले आहेत आणि हेच कुठेतरी विक्टोरियन संघासाठी मारक ठरू शकतं, धोकादायक ठरू शकतं. लगातार 3 डॉट गेंदे, दबाव बनता हुआ रजाक पर. इस बार थोड़ी शॉर्ट गेंद पुल कर दिया बैकफुट पर जाकर, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है डीप मिड विकेट पर. सिर्फ एक ही रन लेने का अवसर. अच्छा ओवर घटता हुआ फाइक अंसारी का. स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. यहाँ से और 27 रनों की जरूरत है. मात्र अब 14 गेंदों का खेल शेष. यस, खूप चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये बघायला मिळते. 4 चेंडूमध्ये फक्त 1 धाव दिलेली आहे. क्या लगता है ये भी मैच अंतिम गेंद तक जाएगा? यस, डेफिनेटली. कारण ज्याप्रमाणे फलंदाजी होते आणि ज्याप्रमाणे गोलंदाजी होते, क्षेत्ररक्षण होते, असं वाटते की ही मॅच सुद्धा शेवटच्या षटकापर्यंत जाईल. हुसैन खान के पास अब स्ट्राइक. इस बार स्लॉक स्वीप किया है, गजब की टाइमिंग और 6 रन. ये बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है. ये दूसरा सिक्सर है हुसैन खान के बल्ले से. यस, पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये स्लॉक स्वीप, काय फटका खेळलेला आणि चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे गेलेला आहे. 6 धावांसाठी षटकार. परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट. कितनी आसानी के साथ, कितनी सहजता के साथ यह स्लॉक स्वीप खेला है हुसैन खान ने. गजब का आत्मविश्वास झलकता हुआ उनके बल्लेबाजी में. 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ विक्टोरियन स्पोर्ट्स का अब 31 रनों पर पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर, और 21 रनों की जरूरत है. 13 गेंदों का खेल बाकी. 122वा षटकार आपण बघितला टुर्नामेंटचा. जिस तरह से हुसैन खान खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जल्दी मैच समाप्त कर सकते हैं यदि उनको आउट नहीं किया गया तो. गति में परिवर्तन, रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, हल्की से अपील हुई, लेकिन अंपायर की सहमति मिली नहीं. डॉट बॉल है ये, और इसके साथ ही फाइक अंसारी का स्पेल समाप्त होता हुआ. 4 ओवर की समाप्ति. 31 पर 3 विक्टोरियन स्पोर्ट्स.
पण एक षटका जरी लगावला असला तरी मात्र एक चांगलं षटक म्हणता येईल, कारण या षटकामध्ये फक्त 7 धावा दिलेल्या आहेत. खूप चांगली गोलंदाजी. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि धावसंख्या झालेली आहे 31. 3 बाद 31. देखिए अभी भी दर्शक आ ही रहे हैं मैच को देखने के लिए। अल्ताफ बाली साहब को आप देख सकते हो, आशिर अंसारी उनके साथ बैठे हुए हैं। चोटग्रस्त हो गए, कैच जब लपका उन्होंने, कमाल का कैच था वो। आणि विनोददादा पाटील यांना आपण पाहू शकता, GCAचे विद्यमान अध्यक्ष आणि RD 440 ओवळी संघाचे सर्वा GCA संघटना आहे. संघटनेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने क्रिकेटशी जवळीक आणि क्रिकेटमध्ये आमूलाग्र बदल ज्याप्रमाणे आपण पाहतोय त्याचं सर्वच श्रेय मी म्हणेन की विनोददादांना द्यावं लागेल. मान्यवर कक्षामध्ये त्यांना आपण पाहू शकता. भिवंडी के विविध विभागों में हम विविध एसोसिएशंस को देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी आमने लोनार ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन है। मदन जाधव अर्थात MD उसके अध्यक्ष है। ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष इस समय हमारे स्क्रीन पर विनोद दादा पाटिल। BC4 है, अमोल पाटिल अब उसके मौजूदा अध्यक्ष है। कई ऐसे एसोसिएशंस है, शेलार से लेकर अंबाडी तक भी एक क्रिकेट एसोसिएशन है। हे भरपूर आहे. 40+ सुद्धा 3 असोसिएशन आहेत. पडगा असोसिएशन आहे. 40+च्या 40+, ओल्ड 40, न्यू 40 आणि मास्टर 40 अशा 3 असोसिएशन आहेत. आणि असोसिएशनच्या माध्यमातून कुठेतरी क्रिकेटचा विकास बघायला मिळतोय. मैच काफ़ी रोमांचक स्थिति में है। 12 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है और अब आर्यन भोईर पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। डेफिनेटली आर्यन भोईर यांनी खूप प्रभावित केलेले आहे. खूप चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. एक युवा आहे आणि मी त्याला म्हणेन की उज्ज्वल भविष्य काळ आहे. मनोज भोईर यांचे सुपुत्र. क्रिकेट तो विरासत में मिली है आर्यन भोईर को। येस, 12 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता आहे. अशा स्थितीमध्ये सामना हा रंगतदार अवस्थेमध्ये बघायला मिळू शकतो. हे जे समीकरण आहे, कित्येक वेळेला सामने हे रंगतदार अवस्थेमध्ये बघायला मिळतात. आर्यन याला मात्र ट्रॅप केलेल्या चेंडूला चेंडू सरळ येतोय मिडॉनला, डीप मिडॉनला. लॉंगांचा क्षेत्ररक्षक झेपावतोय तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक धाव घेण्याची संधी मिळाली. बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर ये है इस मैच का, पेनल्टीमेट ओवर। और काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा इस ओवर पर कि अंतिम ओवर में क्या इक्वेशन रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा रन्स छोड़ना चाहेंगे अपने आखिरी गेंदबाज के लिए आर्यन भोईर, लेकिन हुसैन खान की कोशिश यही होगी कि इस ओवर में ही ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरे जाए और आखिरी ओवर में दबाव ज़्यादा ना रखे। यस, दोन्ही गोष्टी बघायला मिळू शकतात. या षटकामध्ये आपण पाहूया कशा प्रकारे आर्यन पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. हा चेंडू मात्र उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच व्हाईट बॉलचा इशारा करते. अशा स्थितीमध्ये व्हाईट बॉल टाकणे नक्की धोकादायक ठरू शकतो संघाला. निश्चित रूप से, क्योंकि एक एक रन बड़ा कीमती है और हमेशा कीमती रहा है क्रिकेट के खेल में, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही कीमती बन गया है क्योंकि आज 2 टीमें 1 रन से मुकाबला हार गई। कल रात भी एक टीम 1 रन से मैच हार गई इस टूर्नामेंट में। आर्यन पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. स्विचिट धावाची शक्यता आहे, मात्र खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण पॉईंटला होतोय 30 षटकाच्या आतमध्ये, पण अतिशय वेगात या ठिकाणी धाव पूर्ण करते हुसैन खान. अच्छे टाइमिंग से स्ट्रोक खेला था उन्होंने, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए, सीधे फील्डर के पास खेल बैठे थे। 34 धावा झालेत. 10 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. सामना अतिशय रंगतदार अवस्थेमध्ये आहे. काही होऊ शकतं अजय. बिल्कुल, इस तरह के इक्वेशन बार बार हमने देखे हैं। आखिरी गेंद से पहले भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल हुआ है हमारे लिए। यस, डेफिनेटली. आर्यन यावेळेला मात्र वाईड यॉर्कर चेंडू बघायला मिळाला. सध्या वाईड यॉर्कर चेंडू खूप प्रचलित झालेला आहे. अरे वाईड यॉर्करवर तितका मोठा फटका खेळणं तितकं तर सोपं नाही आहे.
बिल्कुल, क्योंकि जो ओल्ड फैशन यॉर्कर होती है स्टंप्स की तरफ, उस पर भी हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं बल्लेबाज, लेकिन जब वाइड यॉर्कर गेंद आती है तो उस पर हेलीकॉप्टर उड़ाना भी बड़ा मुश्किल काम रहता है। ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं रहते बल्लेबाजों के पास बड़े शॉट्स के। अच्छी सोच आर्यन भोईर की। आर्यन पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. हा चेंडूमध्ये फुलटा चेंडू ड्राईव्ह केला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. फक्त आणि फक्त एकच धाव मिळेल. फिर से यॉर्कर की कोशिश थी, इस बार फुल टॉस बनी थी लेकिन ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज। रन संख्या 35, 17 रन और चाहिए, मात्र 8 गेंदों का खेल शेष है। यस 8 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. अजूनही सामना 50-50 अवस्थेमध्ये आहे. कारण आपण पाहतो हुसेन खान ज्याने आतापर्यंत 2 षटकार लगावलेले आहेत. अभी तक तो अच्छी गेंदबाजी की है आर्यन भोईर ने इस ओवर में, लेकिन देखना है कि ओवर का समापन किस तरह से कर पाते हैं। आतापर्यंत खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली, कारण आपण पाहतोय 4 चेंडू टाकलेले आहेत आणि 4 धावा दिलेल्या आहेत. खूप चांगली गोलंदाजी. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे षटकातला. आर्यन याला मात्र ड्राईव्ह केलंय मिड विकेटला. पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केलेली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जात नाहीये, कारण खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण मिड विकेटला होते. संपूर्ण पाहिजे संघ पूर्ण चार्ज झालेला आहे. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतंय. गजब का क्रिकेट, एक और दिल धड़क मैच धर्म राजा चषक 2022 में, और अच्छा एग्जीक्यूशन आर्यन भोईर का अभी तक। उनको पता है कि हुसैन खान के सामने यॉर्कर ही दिखानी पड़ेगी, नहीं तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। हे आमचे नरेशजी भोईर यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. नरेशजी आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम. यहाँ से जो भी टीम अपने नर्व्स को काबू में रखेगी, जीत उसी की होगी। अभी भी बिल्कुल बराबरी का संघर्ष देखने को मिल रहा है। 7 गेंदे और 16 रन चाहिए। 7-16. आर्यन यशाला पुन्हा ब्लॉक मध्ये धावाची शक्यता आहे. पंचांकडे थोडस साशंक नजरेनं बघितलं जात आहे. पंच काय या ठिकाणी डिसिजन घेतात पाहूया आपण. धाव मात्र पूर्ण झालेली आहे, पाहूया. और ओवर समाप्त होता हुआ। गजब की गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम आर्यन भोईर की। इतने कम उम्र में इस तरह की गेंदबाजी करना अंडर प्रेशर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले मैच में भी उन्होंने अंडर प्रेशर बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। आशिर अंसारी मैन ऑफ द मैच बने थे। उस मैच में उन्होंने कहा कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आर्यन भोईर को दिया जाए। और इस मैच में भी देखिए, पहला ओवर उतना अच्छा नहीं रहा था, कुछ वाइट गेंदें की थी, एक सिक्सर भी लगा था, लेकिन इस ओवर में वापसी करके दिखाई। 5 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। विकेटें तो काफी हाथ में है, लेकिन अब आखिरी ओवर में जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। यस 6 चेंडू आणि 15 6 गेंदों में 15 रन चाहिए. 6 चेंडू मध्ये 15 धावांची आवश्यकता आहे. एक और थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट। लेफ्ट आर्मर आक्रमण पर आते हुए आकिब खान, बैट के बल्लेबाज है क्रीज पर रजाक, उनके पास स्ट्राइक भी है। इट्स लास्ट क्वार्टर फायनल, शेवटचा उपांत्यपूर्व फेरीतली मॅच आपण पाहतोय. 6 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे. आकिब खान अंतिम षटक. याला मात्र ड्राईव्ह केल्यावर आढळण्यात मात्र यश आलेल्या. पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केली. दुसरी धाव घेण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला जातोय. धावाची शक्यता आहे, मात्र दुसरी धाव पूर्ण होते. आता मात्र 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 13 धावांची आवश्यकता. सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 5 गेंदों में यदि 13 रन बनाने हैं तो कम से कम एक तो बड़ा हिट खेलना ही होगा बल्लेबाजों को. येस, कारण 5 चेंडूमध्ये 13 धावांची आवश्यकता. एक मोठा फटका खेळणं हे अनिवार्य झालेलं आहे. आने वाले बल्लेबाजों में दानिश काजी का आना बाकी है, जो कि एक अच्छे फिनिशर माने जाते हैं.
आकिब खान लेफ्ट आर्म याला मात्र जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न अपील केला जातोय आणि ह्याचबरोबर फलंदाज बाद. काफी धीमी पारी रही रजाक की. ऑन साइड में खेलना चाहते थे, टप्पा पड़ने के बाद एंगल के तहत थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद थी. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं आकिब. बाहरी किनारा लगा और आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए. निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए रजाक ओपन करने आए थे. हालांकि पार्टनरशिप तो बनी चौथे विकेट के लिए, लेकिन पिछले कुछ गेंदों से काफ़ी धीमी गति से रन्स आए, जिस वजह से दबाव कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पर बन गया था. 14 रन बनाकर आउट हुए हैं रजाक. नए बैट्समैन दानिश काजी क्या पलट सकते हैं बाजी. येस रजाकने 15 चेंडूचा सामना केला आणि 14 धावांची खेळी केली. स्ट्राईक रेट जर आपण बघितला अंडर 100 पेक्षा कमी आहे आणि 100पेक्षा कमी स्ट्राईक रेट तुम्ही जेव्हा खेळतात तेव्हा नक्कीच आपल्या संघासाठी हे मारक ठरतं. और देखिए डॉट गेंदें उन्होंने ज़्यादा खेली, वो भी वो जब चोटग्रस्त हुए उसके बाद, तो कहीं ना कहीं उनकी एकाग्रता भी भंग हो गई और जिस तरह के खिलाड़ी है उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए. खैर अब दानिश क्रीज पर आ चुके हैं. 4 गेंदों में 13 रन चाहिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को. यस 4-13 4 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे. दानिश काजीकडे एक क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची, पण क्षमता असून चालत नाही, क्षमतेचा वापर तुम्ही करायला हवा. ऐसी परिस्थितियों में कई बार उन्होंने बल्लेबाजी की है. अंडर फ्लड लाइट्स देर रात भी कई मुकाबले जिताए उन्होंने. हा चेंडू मात्र उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच इशारा करतायत वाईड बॉल. दानिश पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे और उसी वजह से उनसे दूर रखने का प्रयास वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने. समीकरण थोड़ा सा बदलता हुआ. अब 4 गेंदों में 12 रन चाहिए. एक मुकाबला टाई हो चुका है आज. क्या एक और टाई मैच, क्या एक और सुपर ओवर. याला मात्र अपील केला ते कॉडबेनचं जोरदार अपील और अंपायर की उंगली भी ऊपर. दानिश का काम भी हुआ तमाम. जबरदस्त गेंदबाजी आकिब खान की. 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं. 2 बायत के बल्लेबाजों को चलता किया है. उठाकर खेलने का प्रयास था, गेंद पर बिल्कुल भी नजरें नहीं थी दानिश की. एक ब्लाइंड स्विंग ही था उनका. खाता भी नहीं खोल पाए दानिश काजी. एक और बायत के बल्लेबाज मैदान में पहुंचते हुए साकिब खान. 3 गेंदों में 12 रन चाहिए. स्कोर है इस समय 40 पर 5. यस या स्पर्धेसाठी प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट मॅन ऑफ सिरीज बाईक आहे आणि बाईकचा मानकरी जो कोणी असेल त्याला स्वतः याचं रजिस्ट्रेशन करावं लागणार आहे, लक्षात घ्यायचं आहे. आणि बाईक विजेता जो असणार आहे त्याने लगेचच त्याचं रजिस्ट्रेशन करून जास्त वेळ न घेता स्वतः त्याचं रजिस्ट्रेशन करायचं आहे. प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट. जी हाँ, उसके स्पॉन्सर है माननीय श्री मनीष धीरज पाटिल साहब, माजी सरपंच ओवली ग्राम पंचायत. स्वर्गीय धीरज बाबू पाटिल, इनके स्मरण में वो बाइक उन्होंने स्पॉन्सर की है. उनके हम शुक्रगुजार है. यस स्वर्गीय धीरज बाबू पाटील हे सुद्धा सरपंच होते ग्रामपंचायत ओवळीचे. 3-12. समय का ख्याल रखना है प्लीज पायनियर स्पोर्ट्स की कैप्टन. यस यावेळेला मात्र ट्राईब केलेला आहे चेंडू. थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण होतंय आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. एक ही रन हो सकता था मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ढील फील्डिंग में देखने को मिली, उसका फायदा मिला है. और अब 2 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता है. साकिब बल्लेबाज है, आकिब गेंदबाज है. आकिब के सामने साकिब है. किसकी तरकीब यहाँ पर सफल हो पाएगी. यस कारण दोन्ही चेंडूला सीमारेचा रस्ता दाखवावा लागेल. पायनियर के 12वें खिलाड़ी तो बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इस बार उड़ाया और बहुत खूब उड़ाया है साकिब के बल्ले से. ये शानदार छक्का. अब आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए. हैरत अंगेज क्रिकेट, सनसनीखेज क्रिकेट. यह है धर्मराजा चषक 2022 ताड़ाली.
एक और मुकाबला जिसका नतीजा आखिरी गेंद पर निकलेगा. यस, एक मिडल कॉन्फरन्स बघायला मिळते. आता मात्र एक चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. काही होऊ शकतं, एनिथिंग कॅन हॅपन. 123वा षटकार टूर्नामेंट. 4 बार गोल्डन 6 लगे हैं इस सीजन में और एक गोल्डन बाउंड्री जो आज लगी है. यस, यहाँ पर 4 रन चाहिए, चौके से काम बन सकता है. गोल्डन बाउंड्री या फिर गोल्डन सिक्सर या फिर गोल्डन गेंद करेंगे गेंदबाज आकिब. यस, हे पाहू शकता आपण पवेलियन. स्वर्गीय किशोर रामचंद्र चौधरी व स्वर्गीय विनायकराव मेटे. यस, हे पाहू शकता मोठ्या संख्येने प्रेक्षक या ठिकाणी आहेत. अगदी या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. बेचैनी है डगआउट में. शेखर दलवी और सभी खिलाड़ी वहां पर देखिए, ज्यादातर खिलाड़ी खड़े हो गए हैं और रहा नहीं जा रहा है, यहां से वहां हो रहे हैं. मैच ही उतना जबरदस्त है. आखिरी गेंद 4 रन चाहिए. साकिब के पास स्ट्राइक. आखिरी गेंद. ओ बहुत दूर से खेल बैठे, किनारा लगा. फील्डर बहुत ही सतर्क है और मैच आखिरकार जीत लिया है पायनियर स्पोर्ट्स ने. एक और रोमांचक जीत धर्मराजा चषक 2022 में पायनियर स्पोर्ट्स के नाम. वाइड गेंद पर बल्ला चला बेटे यहां पर साकिब. निश्चित रूप से ये वाइड हो जाती यदि छोड़ देते तो, लेकिन प्रहार करने की कोशिश की और मिस टाइम कर बैठे. लाजवाब क्रिकेट. दोनों भी टीमों की सराहना करनी होगी. आखिरकार जीत तो क्रिकेट की ही हुई है और जीत हुई है भिवंडी सिटी क्रिकेट की. जीत हुई है धर्मराजा चषक 2022 की. कॉन्ग्रेचुलेशंस पायनियर स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक टफ लक विक्टोरियन स्पोर्ट्स. तो सेमीफाइनल में इस जीत के साथ ही प्रवेश कर लिया है पायनियर स्पोर्ट्स ने और पायनियर स्पोर्ट्स का सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा मैगी 11 के विरुद्ध. बस कुछ ही पलों में यहाँ पर पहला सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है. RD 4440 ओवली और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बीच में. टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है रईस के कैप्टन ने. पहले बैटिंग उन्होंने चुनी है. आइए चलते हैं अब मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ. इस मैच के मैन ऑफ द मैच बहुत विचार मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया है, गहरी सोच के बाद. कप्तान फाइक अंसारी 2 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट्स. अच्छी कप्तानी भी रही उनकी. नाही, या ठिकाणी आपण विरेसचा सुद्धा विचार केला होता, पण 2 षटकामध्ये फक्त 10 धावा देऊन 2 फलंदाज बाद केले. येस, आणि शेखर दळवी ची विकेट महत्वाची ठरली. फाइक अन्सारी इज द मॅन ऑफ द मॅच. येस, अल्ताफ अली सर, आपणास भी मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. आपको VIP पे आना है. कृपया VIP कक्षासमोर जे काही प्रेक्षक आहेत थोडंसं बाजूला व्हायचं. यस, पाईक असते आपण यायचं आहे. भरतजी पाटील यांना विनंती करणार आहे, आपण आकर्षक ट्रॉफी
येस निखिलजी शिंदे आणि भरतजी भाटी आपण आपल्या शुभ हस्ते ही आकर्षक ट्रॉफी प्रदान करायची आहे. पायक अन्सारी इज द मॅन ऑफ द मॅच. त्यानंतर स्वर्गीय वैतरणा पंडित गायकवाड यांच्या स्मरणार्थ पंडित गिफ्ट हॅम्पर जे बॉम्बे कॉटन श्याम कोंडे यांनी स्पॉन्सर केलेले ओंकारजी पांडे आपण द्यायचंय आपल्या शुभ हस्ते. त्यानंतर येस उमेशजी सोनावणे आपण आपल्या शुभ हस्ते गिफ्ट हॅम्पर जे आम्हाला स्वर्गीय वैतरणा पंडित गायकवाड यांच्या स्मरणार्थ पंडित गोविंद गायकवाड यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. सो फाईक अन्सारी फाईक वेल प्लेड and best luck for next match. Pike well played and best luck for next match. थँक्यू सर.